सबसे पहले thank you so much all of you for taking time out. I know industry fraternity, a lot of analysts from the buy side and sell side are part of this presentation that we will be running for Airlink Communications Limited. Very briefly, let me first introduce everyone who is here and the most important people who will be giving you the presentation. So first of all, it's myself, Kamran Naji, Executive JS Global Capital Limited. I am the consultant and the book runner to the issue. JS Global has the mandate, and alongside me, on my left, it's Muzaffar Hayat Raja, who is the owner, sponsor, and chief executive of Airlink Communications Limited. And we are also joined by the Chief Financial Officer of the company, Mr. Nusrat Mahmood, who's setting this to us. So we will straight away move to the presentation part. As the format, my colleague may have told you that the industry professionals are on the call. So we would request कि हम commute कर रहे हैं for the sake of presentation के दरमियान किसी किस्म की disturbance ना हो. But right after when I finish the presentation, which will take about 40 to 45 minutes, we will try to be brief as much as we can be. उसके बाद, you can raise your hand, you can even write your question, and we can also allocate you time to run your queries, and we will be very happy to respond to those. मैं आवाज करने लगा presentation का. Transaction structure, the foremost thing. 90 million shares in issuance at a base price of 65. Now, this will make the overall size at 5.85 billion, which will be the largest equity issuance in the private sector in Pakistan. So it's a hybrid structure. 60 million shares would be new shares that will be issued, and there will be an offer for sale of 30 million shares. Generally, people do have a tendency to question why an offer for sale. Though कानून के अंदर this is completely legal to go for a hybrid nature of transaction, but for brevity and for a little background, अगर आप कंपनी का थोड़ा सा मुशाहिदा करेंगे और आप उसका प्रोस्पेक्टस जो आज पब्लिश हो गया है वेबसाइट पे है उसको पढ़ेंगे, आपको नजर आएगा कि कंपनी 2012 में जब इस स्मार्टफोन बिजनेस स्टार्ट किया था, so it was a partnership concern. As a partnership concern, उस वक्त डिमांड इतनी ज्यादा थी कि आपको बैंकिंग लाइंस डेवलप करने में टाइम लगता था और वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा थे. कंपनी को मार्केट शेयर ग्रैब करना था, तो उसके लिए मुजफ्फर साहब ने अपनी इक्विटी जितनी हो सकती थी इंजेक्ट की, और जहां भी वर्किंग कैपिटल नीड्स आई, so he kept on borrowing at a personal level from his other family members. उनके साथ एक एग्रीमेंट थी कि whenever he will take the company public, he will take care of them through that offer for sale. मैं सिर्फ ग्रोथ की रिफ्लेक्शन आपको दूं. 2012 में while they were a partnership firm, इनकी टॉप लाइन सेल्स 140 मिलियन, 14 करोड़, और 2021 जून जो खत्म हो रहा है तो इसके 47.5 अरब की होगी है, 47.5 बिलियन अप्रोक्सीमेट. सो दिस जर्नी जिसमें आप देखें 9 साल में 14 करोड़ से 47.5 अरब की सेल, सो डेफिनेटली इट्स अ वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस जिसमें पैसे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थे. तो ये मैंने आपको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया. एक मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूं कि बिजनेस मॉडल ये रन किस तरीके से होता है. देखें, जो मनी इनसे 4 अरब आएगा उसको एज अ रूल ऑफ थंब याद रखिए कि मैं पहले कैश कन्वर्जन साइकिल आपको समझा दूं कि कंपनी का है कैसा. जब कंपनी एक इंपोर्ट पॉलिसी पेश करती है आउटसाइड पाकिस्तान, इट टेक्स रफली अबाउट 15 days फॉर द अराइवल ऑफ दैट शिपमेंट इनटू पाकिस्तान. सो 15 दिन इज द लीड टाइम from opening of the LC to receiving of goods in the warehouses of the company. 30 दिन का कंपनी लेवल मेंटेन करती है, and roughly 25 to 30 days it takes to recover the money back. जो भी कैश आप इंजेक्ट करते हैं वो 75 दिन के साइकिल के बाद कंपनी के पास वापस आ जाता है. इसको डिवाइड अगर आप 365 से करेंगे, it will give you 5 cycles. So generally as a rule of thumb, आपके पास जो भी पैसा है, भले आपके शेयर कैपिटल में है, आपकी रिटेन अर्निंग्स में है, आपके पास बैंकिंग लाइंस की सूरत में है such as working capital, so that money can be rotated minimum 5 times in a year. So ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. इससे आपको ये पता चलेगा कि जो 4 अरब का मनी इन होगा वो पैसे आने 12 महीने में it will give you a sale addition in the top line of 20 billion. So this was important to give you a little background about how the entire thing works. Company SECP approval or PSS approval, they are all in place. The company is due to go for book on the 30th and 31st of August. These are the book building dates.
ट्रांजिशन होती है completely built units to semi knockdown units. एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इस वक्त एयरलिंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट distributors operating in Pakistan. So इनका closest competition is MNP, and between Mullen Phipps and Airlink, the positions keep swapping. नंबर 1 पे ये होते हैं, कभी नंबर 1 पे वो होते हैं, अगर आप monthly custom import data को track करेंगे. So between the two, roughly कोई मार्केट का 40 से 45% शेयर इन दो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है, बाकी सारा फ्रैगमेंटेड है. But Airlink has a clear advantage in terms of the fact it is the only distributor which is now completely and fully integrated. Forward integration, they have gone into retail stores. In the backward integration, they have gone into putting up an assembling plant. इसमें एक important concept ये है कि 4 साल पहले जब कंपनी में we came in as advisors almost 4 years ago, उस वक्त you can walk into an Apple store, you can walk into a Samsung store, or you can walk into a multi. This concept was not prevalent in Pakistan. यहाँ पे आप सदर बाजार जाएंगे या टी सेंटर जाएंगे फोन लेने के लिए, और families, especially females, they do not have such access. So ये user experience पे जाके किसी चीज को देखना, उसकी technology समझना, उसके बाद knowing that you have after sales service, knowing that you have a company that is backing up in terms of warranties and in terms of guarantees, in terms of product quality, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहली बार एयरलिंक ने लॉन्च किया. तो ये सारे की पीरियड में खोले. मगर आपने अगर विजिट किया हो डॉल्मेन मॉल या कराची में लकी मॉल, और उसी तरीके से लाहौर में एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, सिनेमा मॉल और एन मालन रोड, तो वहां पे जाके आपको दो तरह के स्टोर्स मिलेंगे. एक है which is called as multi-brand store, जिसपे एयरलिंक की ब्रांडिंग होगी और तमाम प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे ऑफ वेरियस स्मार्टफोन ब्रांड्स, और एक मिलेगा ब्रांड स्पेसिफिक स्टोर. वो ब्रांड स्पेसिफिक आप लकी में देखेंगे, आपको सैमसंग मिलेगा, हुआवे मिलेगा, Xiaomi मिलेगा. These are all operated and owned by Airlink specifically for that principle. So ये दो तरह के मॉडल स्टोर्स के रन करते हैं. एक दूसरा कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट ये है कि पहले स्मार्टफोन्स आया करते थे इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीटली बिल्ट यूनिट. कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेस लगती थी तकरीबन 20 से 25% के दरमियान, जस्ट ऑन एंड ऑफ. जब से मोबाइल पॉलिसी आई है, जिसमें मुजफ्फर याद पराचा का अपना बहुत रोल है, हैपेंस टू बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन. सो जो नई मोबाइल पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिया गया था कि अगर उनको एज ए सेमी नॉकडाउन यूनिट पाएंगे और असेंबल करेंगे तो उस पर ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर will go down to literally or possibly zero. सिवाय मेरे ख्याल में 10 रुपए का एक्सेट टैक्स आपको देना पड़ता है, बाकी all duties and taxes they have been completely done away with. So वो स्ट्रक्चर जीरो हो गया, which means कि जो फोन आप सीपीयू के तौर पर पाकिस्तान में मंगवाए अगर 100 रुपए का कॉस्ट कर रहा है, तो आज के दिन में उसी का एससी मंगा के उसको असेंबल करके यहाँ बेचेंगे, तो 20 से 25% का ड्यूटी डेल्टा अगर खत्म हो तो 75 से 80 रुपए उसकी प्राइस रह जाएगी. which means if you lower the price, the demand will consequentially increase. Employee base, it has increased from 477 to 1097 this year. और ये सारा का सारा increase जो है, that is attributable to the manufacturing facility that Airlink has put up. Manufacturing facility बहुत capital intensive process नहीं होता. Lines operational है, 7 lines है. Total lines. Total 7. वो 7 lines जो capex है without land. क्योंकि लैंड लॉन्ग लीज है, दैट इज अबाउट 600 मिलियन जो कंपनी ने इंडिजिनस सोर्सेज से पुट अप किया. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज नॉट द रियल कैपेक्स. असल में इट्स ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं तो आप प्रिंसिपल से जो इंपोर्ट मनी इन्वॉल्वमेंट इज ऑफ द कंपनी दैट इज होल्डिंग और इज ओनिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. So during this period, 6 new stores have also been opened across Pakistan, taking a 10 to 14. Total volumes increased by 53% during the year. 30th June 2020 पे इनकी volumetric sales थी 2.4 million units. By 30th June 2021, it has shot up to 3.65 million units. You can see, despite COVID and despite pandemic and despite general sluggishness in the market, I think this company has done really well, and it is consistent with their history. Increase on the corresponding side is 16%. Now, this is 16% revenue increase to the volume 53% है. So let me explain a bit of phenomenon of how
pandemic has played out in Pakistan. So pandemic के period में if you see the high income group and the premium, यहाँ पे आपके SOPs, lockdowns और typically आपके 3 मेजर शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी पैन पाकिस्तान कोरोना एग्जिस्ट भी करता है. जनरली पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट वाज नॉट टेकिंग इट सीरियसली, हेंस वहां मार्केट्स में ऑपरेशन होता रहा. सो इस पीरियड में जो लोअर बैंड का फोन है वो ज्यादा बड़ा, क्योंकि जिन मार्केट्स को वो सर्व कर रहा था टियर 1 की लोअर मार्केट एंड टियर 2 टियर 3 सिटीज एंड टाउन्स के अंदर, सो दे रिमेन ओपन. सो आपको वहां पे इंक्रीज ग्रोथ बहुत ज्यादा नजर आई. जो हाई एंड और प्रीमियम साइड है वहां पे जनरली वो ग्रोथ रिलेटिवली कम थी. सो स्मॉलर वैल्यू, जितना प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल होगी उतना उस पर मार्जिन कम होता है, और जितना प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी हो जाती है उतना मार्जिन इंक्रीज हो जाता है. सो दिस वाज जस्ट टू गिव यू अ रिफ्लेक्शन कि व्हाई कॉरेस्पॉन्डिंग रेवेन्यू इंक्रीज इज 16%, व्हिच जो एयरलाइन मैनेजमेंट ने अभी बताया है कि बाय अगस्त दिस ईयर दिस पैटर्न इज अगेन सबसे इम्पोर्टेंट एंड है कि वहां पे बिकॉज अब ईज ऑफ लॉकडाउन में काफी ज्यादा हो चुका है और आपके जो ऑपरेशनल बिजनेस ऑपरेशन है वो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गया पाकिस्तान में. वैक्सीनेशन एंड above all awareness is there. Slide 5 very quickly it gives you the snapshot of the factory. Now this factory was inaugurated by Hamad Azhar back in April this year 2021. Capacity की single shift factory की single shift basis capacity is 400,000 units per month. Break even level is at 95,000 sets per month. Current production about 3 to 4 months has already shot up to 150,000 sets per month, which means कि जितना इंक्रीज फैक्ट्री में 600 लोगों का आपने देखा था वो सारा एब्जॉर्ब होकर द फैक्ट्री इज ऑलरेडी इनटू पॉजिटिव. और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन द कंपनी एक्सपेक्ट्स के ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस के अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर है 2021 कैलेंडर ईयर का, इसके अंदर दे विल अचीव 100% कैपेसिटी प्रोडक्शन. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इनके प्रिंसिपल्स में ट्राशन ग्रुप है व्हिच इज अ चाइनीज ग्रुप दैट डील्स विद आइटल, Techno and Infinix. In का pan Pakistan market share 37%. So this by far it is the largest brand group that operates in Pakistan. सबसे ज्यादा market share इनका है volumetric. आप Samsung का देखेंगे तो 17% है. अगली स्लाइड पे मैं आपको सबके शेयर भी दिखाऊंगा. प्लस उसके अलावा इंटीग्रेटेड TCL और Alcatel के साथ हैं इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे, और इनका फोकस खास तौर पे एक फीचर फोन को Slide 6 is a summary and a snapshot of what this company is all about. इसकी तमाम USPs मैं आपसे यही डिस्कस कर लूंगा. The remaining slides we will have a pretty quick run. सबसे पहले it is one of the leading and the largest distributor of mobile phones in Pakistan. It has a nationwide distribution network linked with 1,000 plus wholesalers and 4,000 plus retailers. Now this gives the company a geographical mapping in over 300 cities and towns pan Pakistan. ये network 300 cities और उसको कवर करता है जो कि 90% प्लस रिटेल स्पेस स्मार्टफोन्स की उसकी कवरेज देता है. जनरली यहाँ पे एक ये भी आता है कि कंपनी अगर सैमसंग के आने का किस तरीके से, क्योंकि सैमसंग की पार्टनरशिप विद लकी ग्रुप, हाउ डज दैट इम्पैक्ट एयरटेल. सो इसका शॉर्ट आंसर ये कि इट इज वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ इट इज पॉजिटिव. देखिए जहां मैं प्रिंसिपल का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो आप समझे प्रिंसिपल से मेरी मुराद है सैमसंग, मेरी मुराद है एप्पल, हुआवे, Xiaomi जो कि ब्रांड ओनर्स हैं. सो विद इन दिस लैंडस्केप ये ब्रांड ओनर सैमसंग है जो डिसाइड करेगा कि लकी की फैक्ट्री पे डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रोडक्ट की होनी है और कितनी क्वांटिटी में वो बनना है. फिर वहां से जो प्रोडक्ट है उसकी ऑफटेक डिसीजन भी इज विद सैमसंग. लकी इज नॉट इनटू अवॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स. इट इज द रोल of Samsung as a principal to decide कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है और उसकी एलोकेशन कितनी होगी. इसमें याद रखिए कि सैमसंग का इस वक्त one of the largest distributors pan Pakistan is Airlink with about 32% market share. So it is imperative to understand कि कल को जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो वो सारे एग्रीमेंट सैमसंग के साथ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के एग्रीड है. लकीज रोल इज टू मैन्युफैक्चर. नाउ इसी चीज को अगर आप रेप्लिकेट कर लें एयरलिंक की फैक्ट्री पे, तो वहां ट्राशन ग्रुप है, वहां पे अगर टेक्नो और आइटल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो डिसीजन भी कि कितना टेक्नो बनेगा, कितना आइटल बनेगा, या TCL या एल्काटेल जो भी प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज विद द प्रिंसिपल और उसकी ऑफटेक.
उसका भी वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एयरलिंक, सो उसकी ऑप्टेक का भी शेड्यूलिंग जो है वो फिक्स है। सो जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल से 100 यूनिट्स जो हैं वो डेवलप हुए, तो वो 100 में से 30 कैलो के एयरलिंक को चली जाएगी और बाकी 70 जो है, से फॉर एग्जांपल वो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉर कवरेज ऑफ द एंटायर कंट्री, दैट विल बी अवॉर्डेड इन दैट वे। एयरलिंक को ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट किस चीज का आता है? जैसे मैंने आपको कैश कन्वर्जन साइकिल बताया था कि आपने इंपोर्ट एलसी खोली 15 दिन में, से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को पाकिस्तान आने में, और ये जो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि स्मार्टफोन अगर सीपीयू की आप एलसी खोलेंगे तो यू विल हैव टू गिव 100% कैश मार्जिन एंड प्लस 100% कैश मार्जिन के अलावा आपको उसके ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस इंकर करने पड़ते हैं। When this would be locally produced in Lucky's factory, आपकी इनलैंड एलसी खुलेगी और वो 15 दिन का लीड टाइम कम होकर 0 पे हो जाएगा, बिकॉज सेम डे आपको कराची से डिलीवरी मिल जाएगी और उसके ऊपर किसी किस्म के फाइनेंशियल चार्जेस नहीं होंगे, एंड सेकेंडली उसके ऊपर 100% कैश मार्जिन वो भी सारा खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट कंपनी को उसके 2 फायदे मिलते हैं, बल्कि 3 मिलते हैं। नंबर 1 कि आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल था वो 75 से रिड्यूस होकर 60 पे आ जाएगा, which means money allocation for Samsung can be rotated 6 times in a year instead of 5. दूसरी बात कि प्रोडक्ट प्राइस अगर गिर रही है तो उससे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से सेल्स वैसे ही इंक्रीज करती है और पेनिट्रेशन और मार्केट शेयर अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है एप्पल। तीसरी चीज कि बॉटम लाइन में से आपके फाइनेंशियल चार्जेस 100% कैश मार्जिन और एलसी मार्जिन सब खत्म हो जाएंगे। सो ये 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं एयरलिंक को पर से अगर वो यहाँ से प्रोडक्ट लोकल सेंटर से उठाता है। दूसरी थोड़ा सा बिजनेस मॉडल एक फाइनली मैं आपसे डिस्कस करूंगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि एयरलिंक इस वक्त लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ स्मार्टफोन इन पाकिस्तान। जैसे मैंने आपसे कहा 14 करोड़ से सेल्स उठ के इस वक्त 9 सालों में 27.4 बिलियन के करीब आ गई है। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन मिड एंड फोन को अगर हम जहन में रखें तो तकरीबन रेंज करता है 8 से 9%। एज अ बेस केस आप समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो जीपी मार्जिन है दे आर 8%। 8% अगर जीपी मार्जिन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वही चीज अगर रिटेल में जाती है तो वहां पे 8% मार्जिन रिजर्व के लिए होता है, और वही चीज अगर प्रोडक्शन में है तो वहां 4 से 5% का मजीद मार्जिन होता है। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम 8% वर्टिकल इंटीग्रेशन में कि 8% से आप 21%। सो इस वक्त अगर एयरलिंक जिस करेगा तो 16 हो जाएगा, और वही अगर इसी फैक्ट्री पे मैन्युफैक्चर होगा तो वो 20 और 21 के दरमियान चला जाएगा। सो इट्स अ जर्नी नॉट ओनली ये मार्केट साइज इंक्रीज हो रही है तो आप सेल में पेनिट्रेशन करें, बल्कि एट द सेम टाइम आप बॉटम लाइन मार्जिन्स को इंप्रूव करेंगे बाय गोइंग इनटू रिटेलिंग, बाय कमिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। सो इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम जिसके ऊपर इस वक्त एयरलिंक है वो काम कर रही है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि कल को अगर लकी ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी, बिल्कुल लकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकता है। एज ऑफ नाउ लकी इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर और अपने किसी प्रोडक्ट की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होगा, मगर सबसे बड़ा इसका बैरियर टू एंट्री इज नॉट द मनी दैट इज नीडेड, क्योंकि दैट इज इन अबंडेंस विद द लकी ग्रुप। The most important barrier to entry is the distribution network, which is linked with 1,000 plus wholesalers and 4,000 plus retailers, giving you a geographical mapping of 300 cities plus towns. Now, this company has achieved in a journey of 11 years. अगर कोई इसमें नया एंट्रेंट भी बनेगा, उसके पास बहुत पैसे भी हुए, तो वो टाइम आधा कर लेगा, लेकिन उससे पहले उसका वहां पहुंचना मुमकिन नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाइबल नहीं होगी। If you see, Airlink is a distributor of Samsung. They're distributing Huawei, they're distributing Apple, they're distributing Xiaomi. MI जिसको कहते हैं, ये लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है दुनिया में, ahead of Samsung and ahead of Apple. Then they are distributor of TCL, Alcatel, Techno, ये जो Trashen group है. So currently they are dealing with 8 brands. Manufacturing facility, जैसे मैंने आपसे कहा, it has already been put into place. Sales revenue growth of 43 billion in the last 8 years. It gives you a CAGR of 104%, और इसी 8 साल का volumetric CAGR is 71%. The only distribution company that is completely vertically integrated. Governance focus is very strong. It is audited by E&Y, which is one of the big 4 firms. चौथा साल है E&Y का company audit करते हुए. ISO certification by QMS and Bureau Veritas are considered to be gold standard in their line of business.
It is the only distribution company or one of the only distribution company that has SAP implementation. SAP implementation का फायदा कि inventory management से sales management, cash management, everything is electronically controlled. Hence, you see कि pandemic में despite lockdown and everything, company has performed phenomenally. Courtesy very good governance systems. Credit rating required नहीं थी, लेकिन फिर भी FACRA से for good order से करवाई गई. Long term is A-, short term is A1. The moment the company will go public, obviously इसके अंदर एक notch की increase expected है. The short term would go to A1 plus, which is the maximum in short term category, and long term would move to A sharp. Company has received or been the recipient of a top taxpayer award in their category of business. So उसके अलावा international customs से भी मतलब customs department से भी पिछले 4 साल से consecutive top taxpayer awards जीत रहे हैं. Enhanced. It is an abbreviation of device identification, registration and blocking system. So ये मैं थोड़ा सा इसको अर्ज करूँ आप लोगों के बेनिफिट के लिए कि ये सिस्टम पाकिस्तान दिया गया था. मुजफ्फर साहब क्योंकि मोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, तो ये गवर्नमेंट के पास है. उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स में अगर आप चाहते हैं कल को मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ग्रे मार्केट एलिमिनेट नहीं करेंगे. ऐसा होता था कि अगर ऑफिशियल चैनल से सैमसंग या एप्पल का फोन इंपोर्ट किया या एमएनपी इंपोर्ट करेगा, तो ये लोग 20 से 25% ड्यूटीज देंगे. वही फोन स्मगल होकर पाकिस्तान में ड्यूटी और टैक्सेस पेमेंट के बगैर 75 से 80 पर अवेलेबल. प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा था. हालांकि एक पे वारंटी थी, दूसरे पे नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग बगैर वारंटी के फोन इसलिए खरीदते थे क्योंकि प्राइस डिफरेंस था. सो गवर्नमेंट ने इनकी इस बात को एक्सेप्ट किया और ये सिस्टम जब इसका लॉन्च हुआ, इसके लॉन्च होने के बाद आज पाकिस्तान में विद इन 60 डेज अगर आप बाहर से फोन लाएंगे तो आप उसकी ड्यूटीज और टैक्सेस पे करेंगे, और अगर आपने नहीं किया तो फोन विल गेट ब्लॉक्ड. सो उससे हुआ ये कि 3 फोल्ड फायदा हुआ. नंबर 1 के आपकी मार्केट फ्रॉम ग्रे मार्केट कन्वर्ट होना शुरू होगी, बल्कि इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन ऑफिशियल चैनल, जिससे कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज आ रहा है और दूसरा बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फायदा हो रहा है. दूसरा गवर्नमेंट का फायदा ये होगा कि ड्यूटी टैक्स कलेक्शन 11 अरब से बढ़ के 55 बिलियन पे चलेंगे. There is a 5-time increase. And third is कि आज के दिन में सैमसंग पाकिस्तान आ गया, Xiaomi ऑलरेडी पाकिस्तान में डिस्कशन में है विद 2 पार्टीज. वो भी कल को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में लगा देंगे. maybe in the next few weeks you will see the announcement who they have signed up with. Fashion Group ने ऑलरेडी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कर दी. अगले 12 महीने के लैंडस्केप में मासवाए 2 बड़े ब्रांड्स के जिसमें एप्पल है और हुआवे है, आप सारों की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में देखेंगे. इसका मतलब है कि प्राइस विल कम डाउन व्हिच विल इंक्रीज द डिमांड कॉन्सिक्वेंशियली. सो ये वाला एंड पाकिस्तान को जो है खास तौर पे वो बिकॉज ऑफ दिस न्यू मोबाइल पॉलिसी मिला. और अगर आपने न्यूज फॉलो की हो तो एक छोटी सी लॉट एक्सपोर्ट भी हुई है गवर्नमेंट के साथ इनका एज एन एसोसिएशन. और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सैमसंग एंड Xiaomi जैसे पाकिस्तान में आ रहा है, फैशन ग्रुप इन फोकस ये है कि once they have penetrated into the Pakistan market, so यहाँ की facilities के लिए export करना शुरू करें, because mind you, it is a human intensive process. फोन कोई 72 parts में आ रहा है, कोई 50 parts में आ रहा है, it is more of qualified labor that is putting the phone sets together at this point in time. So labor आपके रीजन में चीप होने की वजह से value addition for export huge market potential. Smartphone penetration in Pakistan is 80% as per Statista. 18% is smartphone penetration as a percentage. So as a rule of thumb, अगर पाकिस्तान की population 100 है तो 18 लोगों के पास स्मार्टफोन है. यहाँ पे जो बाकी 82 population है उसमें से roughly 40% के पास फोन है ही नहीं और बाकी 60% के पास रफली फीचर फोन वो फोन होता है जिससे आप सिर्फ फोन मिला सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और theoretically it is not considered smartphone क्योंकि इसमें स्मार्टफोन फीचर नहीं होते. मैं यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट की ड्राइवर्स बता दूं जो कि आपको फिर सारा बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा कि पिछले 10 सालों में इस इंडस्ट्री का हर साल एक हाई आया और हर साल एयरलिफ्ट ने उस हाई को एंजॉय किया बिकॉज दे kept on increasing their market share and kept on penetrating into the Pakistan market. But the point ponder upon and focus is कि जो चेंज आया सबसे बड़ा इस वक्त वो ये है कि पहले पाकिस्तान में आपको लेवल अगर आपने स्मार्टफोन लेना है
तो उसकी प्राइस थी कि जनरली आपकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास स्मार्टफोन लेना अफोर्ड नहीं करती थी। तो वही 4000 से 5000, 5500, कोई फोन 2000, 2500 की खरीदा था। उसके अंदर एक नॉर्मल फीचर फोन खरीद के उससे गुजारा करते थे। लेकिन अब पिछले 12-18 महीने में एंट्री लेवल स्मार्टफोन 7200, 7200 वाले फोन के अंदर तमाम स्मार्ट फीचर्स हैं। दिस इज द सेम फोन दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द फैक्ट्री ऑफ एयरलिफ्ट और इसके अंदर थंब रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन की कन्वर्जन आ रही है फ्रॉम फीचर फोन इनटू स्मार्टफोन्स. Now this is a new market addition which will keep the market dynamics strong in terms of demand going forward into the future. So that's an important point to understand. दूसरी important चीज कि 3G 4G अभी पाकिस्तान में penetrate किया नहीं और आपका 5G का BT announcement की भी है कि 2023 में लॉन्च करेगा. Existing technology आपकी 5G सपोर्ट करती नहीं भले आप So just like the 5G है उसका मतलब है paradigm shift in technology means if you have to use 5G technology with smartphone which will be 5G enabled. So that is another demand driver. Third, पाकिस्तान में जो product life cycle replacement है smartphones की generally it is taken to be 3 years. Internationally this period is less than 2 years. So वो एक और demand driver है और चौथी चीज is the e-commerce potential and the penetration that is taking place in Pakistan. इस साल में जितनी e-commerce और tech platform की investment हुई है कहा जा रहा है कि it is more than the last 8 years clubbed together. और जिस बेस पे खैर पेंडेमिक ने इसको हेल्प एक्सरसिपेट होगी from branchless banking to as brokers, आपके trading platforms to everything is now coming down on the electronic medium, which means a smartphone will become the necessity and it will no longer be a luxury going forward. So it was in a nutshell background of business model. Slide 7. It is a sponsored journey. मुजफ्फर साहब अगर इसको आप briefly 5 मिनट में कवर करने ताकि मैं बाकी presentation को जी अस्सलाम वालेकुम everybody. Thanks a lot Aman for giving the detailed presentation about the company. I just want to tell you about who we are and how we came to this telecom business. So basically, we're textile people. We're textile in Karachi back in till 2008 तक कराची में textile थी, and it was by the name of Lubna Textile and textile processing plus knitwear. It was one of the biggest units at that time, having a production of 150,000 meters a day. So my family, we established this textile in early 1982, 1983. तो 28 साल हमने वो textile चलाई. And I did my education from HSM College Law, and then from FC College, and then I learned fun flying. I got the private pilot license. और उसके बाद मैंने family business to textile को join किया 1992 में कराची से. टेक्सटाइल बहुत अच्छी जा रही थी और 2008 में हमने ये महसूस किया कि टेक्सटाइल में वो बूम नहीं है और वो उड़ान नहीं है जो हम देखना चाह रहे हैं. बिकॉज मेरा हमेशा से विजन था एक ऐसी कंपनी क्रिएट की जाए जो लॉन्ग टर्म हो, जिसका जनरेशन से भी हो, जो कंपनी का मतलब एक प्रॉपर कंपनी हो. लाइक ऑलवेज व्हेनेवर आई गो टू यूरोप तो वहाँ पे कंपनीज थी और उधर लिखा होता था एस्टैब्लिश्ड सिंस 1800 since 1853. बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड कंपनी होनी चाहिए. सो चूंकि लुना टेक्सटाइल एक सेल्फ फाइनेंस यूनिट था, 2008 में हमने उसको बंद किया और 2010 में पंजाब से लाहौर से एयरलिंक कम्युनिकेशन को रजिस्टर्ड किया और इस कंपनी को शुरू किया. और अगर आप लोगों को याद हो तो PTCL की वो वाईफाई स्टिक डिस्ट्रीब्यूटर थे और हमने उस वक्त 3G पाकिस्तान के सिर्फ बड़े शहरों में था, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लेकिन छोटे शहरों में रूरल एरिया में कहीं 3G का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और इट वाज लोगों को क्योंकि ना वहाँ ब्रॉडबैंड तक कुछ नहीं था. देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड देयर. तो हमने 2010 में सीबो को इंट्रोड्यूस किया, पाकिस्तान के हर कोने में इंट्रोड्यूस किया. इसी तरह 2011 में मैंने 3G टैबलेट बनवाया चाइना और इंडोनेशियन कंपनी IBO के साथ में, वो PTCL को दिया जिसका नाम PTC टैब था, ईवो टैब था. ईवो टैब के मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ एयरलिंक कम्युनिकेशन था 2012 में क्या. और हमने उस वक्त 3G टेक्नोलॉजी यूज की. दैट वाज अ वीडियो टेक्नोलॉजी और लोगों को बेस्ट इंटरनेट सर्विसेज थ्रू टैबलेट भी पहुंचाई. 2012 में we started Huawei and we became their official partners for Pakistan. I brought Huawei in mobile division to Pakistan and we were their founder device partner.
we worked hard और हमने पूरे मुल्क में नेटवर्क फैलाया and just in time span of 3 years Huawei पाकिस्तान के हर कोने में पहुंच चुका था और Huawei in 2015 they had a market share of 15%, 15 to 17%, which was a big market share and Huawei never dreamed of it. In 2015, Huawei awarded us the Gold Partner Award. At that, there are only 7 gold partners in the whole globe. This award was being given to us at Consumer Electronics Show, USA, Las Vegas. जब भी हमें अवार्ड दिया तो Huawei ने एक चीज वहां डिस्क्लोज की कि Airlink being studied as a case study at the Huawei school, that how Airlink ने कैसे penetrate किया और किस तरह competition like all the big brands, global brands के सामने 3 साल में 17% market share पे आया. In 2016 we signed Samsung. जब हमने Samsung sign किया तो ये बड़ा क्वेश्चन था कि वो competing brands हैं, but we proved yes Airlink has the capability कि वो competing brands को भी under one umbrella चला सकते हैं. We proved it और बड़ा सक्सेसफुल हमने चलाया. 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई तो विजन वाज, इस गवर्नमेंट का शुरू से विजन था मेड इन पाकिस्तान विजन. तो मेड इन पाकिस्तान विजन तभी मुमकिन था कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मगल्ड फोन आ रहे हैं तो खत्म ना किया जाता, लोकल इंडस्ट्री कभी ग्रो नहीं कर सकती और बड़े चैलेंजेस आ रहे थे, स्मगलिंग भी इंतहा थी. सो एट दैट टाइम आई वाज एसोसिएशन लाइक ऑल पाकिस्तान मोबाइल एंड होटल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन व्हिच हैपेंस टू बी उसका मैं उसका चेयरमैन भी हूं और हमाद अजहर साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब के साथ मिलकर बेइंतहा काम किया और डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर ब्लॉकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. ऐसे इंट्रोड्यूस करने से हुआ क्या कि स्मगलिंग टोटल बंद होगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो 11 बिलियन का था वो 2 साल में 55 बिलियन पे पहुंच गया. और साथ ही ये रहा हमारे के पाकिस्तान लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ सके. 2019 में हमने महसूस किया कि एयरलिंक कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ मिड और हाई एंड which was Tecno, TCL, Alcatel, Itel and Xiaomi. But why to forget the global top brand? तो हमने एप्पल को साइन किया, एप्पल के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर मर्केंटाइल पैसिफिक के साथ और इस तरह हमने पाकिस्तान में 1200 रुपए से लेके 3,60,000 तक की हर प्राइस ब्रैकेट को कवर किया. ये तो प्राइस ब्रैकेट आपने कवर कर लिया, आप समझते हैं कि इस तरह पाकिस्तान के हर कोने में और हर घर में एयरलिंक का प्रोडक्ट पहुंचे, मगर लोगों को डायरेक्ट एक्सेस देना, डायरेक्ट प्रोडक्ट की फील देने के लिए वही प्लान क्या है विद द प्लान. हमने एक ऐसे स्टोर्स बनाए, इससे पहले जो आप यूरोप और अमेरिका में देखते हैं उस लेवल के स्टोर्स पाकिस्तान में कहीं भी नहीं थे जहां पे बच्चियां पूरी फैमिली सब जा सके. आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रिएटेड 14 स्टोर्स इन पाकिस्तान. कराची डॉलमेन मॉल, लकी मॉल, लाहौर जिम्मा मॉल, पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल, बाबरपुर में, हैदराबाद में, मुल्तान में, ये जितने स्टोर्स हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करते हैं और तमाम के तमाम स्टोर्स पे आपको लाइव प्रोडक्ट फिजिकल एक्सपीरियंस मिलता है. सो ये हमने स्टोर का एक बेंचमार्क ही चेंज कर दिया. मोबाइल सेलिंग का एक तकरीब पूरा बेंचमार्क, पूरा सिस्टम इस मुल्क में हमने एक नया कॉन्सेप्ट. खाली यही नहीं, इसके साथ हमने देखा कि अगर स्मगलिंग बंद हो गया तो मेड इन पाकिस्तान विजन कैसे, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई इस मोबाइल के ऊपर अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा, असेंबलिंग होगा तो उस पर जीरो ड्यूटी होगी. The difference between zero duty and on the CBU the duty on import is 25 to 30%. So हमने 2020 में एक फैक्ट्री शुरू की, 2021 में मार्च में हमाद अजहर साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की. It is one of the state of the art facility. आप में से कोई भी लाओ तो most welcome visit that facility. इस facility के अंदर it's dust proof, fire proof, it's humidity control, temperature control, static charge. It's very high end facility. और इस फैसिलिटी के अंदर साथ ही गवर्नमेंट ने हमें 10 साल का पीटीए लाइसेंस दे दिया मैन्युफैक्चरिंग का. और वी हैव गॉट लाइसेंस फ्रॉम टीसीएल, टेक्नो व्हिच इज ट्रांशन ग्रुप, आईटेल अगेन व्हिच इज ट्रांशन ग्रुप, और इनके हमने लाइसेंस लेके इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी. इस वक्त वो ब्रेक इवन पे पहुंच चुकी. मैं समझता हूँ कि एयरलिंक इज द ओनली कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, हमने मुल्क को 16 हब्स में डिवाइड किया हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके रिटेल नेटवर्क से लेके और अपने रिटेल नेटवर्क तक एयरलिंक इज द ओनली कंपनी. और आप इस चीज से लगा लें कि 2012 में हमारी सेल 14 करोड़ थी और इस साल इट इज अराउंड 48. सो ये ग्रोथ आप हमारे तमाम का हमारे पे कॉन्फिडेंस है और उस कॉन्फिडेंस की ये जीती जागती मिसाल है
कि हम इस वक्त मुल्क में माशाल्लाह लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और लीड कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में हमारा भी यही है कि कंपनी की जिस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाई है, टॉप 5 टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री है, इस कंपनी को ये आने वाले वक्तों में एक मिसाल होनी चाहिए कि दैट दिस इज द कंपनी, और ऐसी कंपनीज मुल्क में और भी आनी चाहिए। और इस इंडस्ट्री को, टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो लैंडस्केप है, या जो आप इसकी इंतहा कह सकते हैं, पाकिस्तान में तो अभी इसकी इब्तदा है, इस मोबाइल इंडस्ट्री की अभी इब्तदा, और मैं समझता हूँ अगर हम नेबरिंग कंट्रीज देखें तो वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही है। एक्सपोर्ट के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात हुई है, इस वक्त 3% रिबेट है, हम 6 कह रहे हैं और वो ऑलमोस्ट 4-5 के ऊपर है। मैं इसकी सिर्फ एक्सपोर्ट के एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। वियतनाम से सैमसंग एक्सपोर्ट हो रहा है, और खाली सैमसंग की एक साल की एक्सपोर्ट $60 अरब है। सो इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में आने से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे ट्रेड डेफिसिट और हर चीज में मुल्क में भी ये एक बहुत अहम रोल है। सो दूसरा, मेरी तमाम CFO साहब है, एडवाइजर है, तमाम हमारे फाइनेंस मैनेजर, एवरीबॉडी इज अवेलेबल, जो क्वेश्चन हो हर चीज के लिए, और कामरान साहब की पूरी टीम इज अवेलेबल, तो जो सवाल हो सबके जवाब। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी फॉर द पेशेंस। ओवर टू यू कामरान साहब। Thank you. Slide 8 board composition है, top left इस्लाम यात्राचा, ये आदर है मुझे यात्राचा के, being a successful business entrepreneur, though he's retired from business, लेकिन उसे कहा गया कि board को chair करेगा this contribution. Raja Muzaffar is wife of Muzaffar Yatracha. She's also not actively engaged into the business, but specializes in marketing and human capital management. Because of her experience, she was asked to steer the board, specifically marketing and human capital management areas. Nafees Sadar is an excellent example because he's a employee of the company since day one. And since day one, he has played an instrumental in the formulation and implementation of the core distribution strategy of the company. And because of his contribution, he was asked to come at the board level to guide the other board members in shaping up the company's future vis-a-vis distribution and retail channels. Right, पे जो तीनों directors आप देख रहे हैं, they are all independent directors. He was required to have 2 independent directors, but opted with 3. On the top is right top, Hussain Quli Khan, the chief executive of General Tyres. It's a listed entity, and you can see that he runs almost a similar business in a different sector. Import, manufacturing, managing distribution channels, and retailing part. So his experience would be very helpful for a company, different sector, and dealing with imports, manufacturing, distribution, and retail. Shariq Azim Siddiqui, experience of lot of greenfield projects also, which are listed, managing investor expectations. So between the two individuals, we feel that the audit committee and the HR committee of the board will be very well served, other than getting a lot of strategic contribution at the board level. Santosh Varastaya, he was the executive vice president at PTCL and UFON, and he is a procurement and logistics process specialist, being a telco guy on the board of a company that's dealing with smartphones. I think director being Muzaffar Yatracha himself. This is the value proposition you can see in the existing scenario. We are one of the leading distributors of smartphones, alongside establishing retail outlets and putting up an assembly plant. In the plans, I think the most important one is an e-commerce platform. You can well imagine that e-commerce sales of smartphones in the year that has went by is less than 5%. Now, saying less than 5%, which means still brick and mortar is something which is very much prevalent in this industry. But the company historically has been taking a lot of first mover advantage in so they decided to develop their e-commerce platform, which is done. It has gone into the testing phase, and we believe in the next 6 to 7 months it will be launched. Now, this will give the company a head and shoulder advantage ahead of its peers, and maybe somebody who's trying to develop a standalone e-commerce platform. Now, the reason why I say so is that when you look at Airlink, day one when they launch it, they will be able to map that network of 1,000 plus wholesalers and 4,000 plus retailers, which gives them a total mapping in 300 cities and towns in Pakistan. So that will give them a huge advantage. All of these will lead to a consequential addition in shareholders' value. Slide 10. This is a graphical snapshot of the journey. 2012 में देखें हमारे 43 million की share was shot up to 47.3 by the end of 2021. Gives you a CAGR of 91%. और इसी पीरियड का वॉल्यूमेट्रिक कैगर 69% 2018 के
The sales were 33,000 units, which shot up to 3.65 million units by the end of 2021. For the first half of 21, the return on equity has been 35%, net profit margins are up 3.5, and revenue growth 53%. Slide 11, this Mr. Raja has already discussed. So I skip this part. 12, we have already discussed again. I'll skip it. Move to 13. Slide 3, वो cash conversion cycle जो explain किया था कि 15 दिन for the import of goods coming into Pakistan, 30 days is inventory stock levels that they maintain, and 30 days is the cash. So 75-day cycle, which we believe via SKD will shorten going forward, which means that आप पैसे को ज़्यादा jump कर सकते हैं going forward into the future. Slide 14 is the nationwide presence of this company. You can see it's divided into some retail offices. Location right पे आ रही है, और ये जो 1000+ wholesalers, 4000+ retailers, that gives you a geographical mapping in 300+ cities and towns in Pakistan, which covers more than 90% of the retail landscape. Service centers, उनकी location, retail outlets 14, लाहौर में 5, कराची में 5, we have recently opened up in Bahawalpur, Hyderabad and Multan. Retail outlets में एक concept मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि दो तरह के स्टोर जैसे बताना शुरू होता है. One is multi-brand store and the other is a single brand store. So with a multi-brand store, जैसे कि आपने देखा में, it is Airlink branded and you can buy all brands. इसको स्टोर establish करें. उसका फायदा ये हुआ कि अगर Samsung branded store है, उसका सारा capex is done by Samsung. उसकी सारी staff Samsung, सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी सारी की सारी जो एयरलिंक के पास आ जाती है, मगर कोई कैपेक्स और कोई पेरोल एयरलिंक को नहीं करना पड़ता. और सेम स्टोर्स में ख्याल किया था शुरू में कि दे विल टेक अबाउट 14-15 months to break even, but as luck would have it, किसी भी स्टोर के अंदर 3 महीने से ऊपर ब्रेक इवन करने में नहीं लगा. कराची का जो स्टोर है डॉर्मेंट का, इट इज गिविंग अ मंथली सेल्स ऑफ 30 million plus already, despite कि इसको भी खुले पैंडेमिक इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, और बाकी रनिंग एट अ रन रेट ऑफ 25 million plus on a monthly basis. Assembling facility situated in Lahore, together with company's head office, about 30+ fund managers. We took them to Lahore to see the assembling facility and meet the other members of the management. Slide 15. ये पिक्टोरियल स्नैपशॉट है. सबसे ऊपर आप एयरलिंक का डॉर्मेंट का स्टोर देखते हैं, उसके बाद नीचे लकी मॉल में और एम्पोरियम और पैकेजेस मॉल जो स्टोर है. अब वहां पे जो हुआ है सैमसंग देखते हैं, दे आर ओन्ड बाय and operated by Airlink. So these are the stores that have come about. Slide 16. ये कंपनी की शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है. पोस्ट आईपीओ मुजफ्फर हयात राजा will own 25%. His first cousin Yasir Hayat will own 25%. His elder brother's family will also own 25%. Unfortunately, his elder brother passed away in bomb blast in Lahore about 4 years ago. 75% by this graphical presentation you can see will be with the family. The remaining 25% will be with the public. Slide 17. This is an important thing to understand. ये convertible privately placed term finance certificates हैं. और अगर आपको याद हो कि USAID ने एक SME फंड लॉन्च किया था, और उसका एक मैंडेट JS के पास था, एक मैंडेट हमने अल्फला के पास किया था, और एक मैंडेट हमारे पर सो ये $50 million की मैचिंग बेसिस पे फंड लॉन्च हुए थे. उसमें partnership with JS Bank, दोनों में 50-50 proration है. 50% is JS Bank, 50% is USAID. So उन्होंने 2 tranches में NBFCs में इन्वेस्टमेंट की. पहली ट्रांच 400 की, दूसरी भी 400 की. The first tranche is convertible at a discount. That's a mandatory conversion at a discount of 20% to the floor price. और जो second tranche है, ये convertible है at strike price, optional conversion. और दोनों की conversion process has not yet begun. ये we are expecting कि जब IPO हो जाए तो उसके बाद होगी, तो it will take several months before you will see the shares being issued. First तो mandatory है, second वाली depends if the sponsor would agree at converting at strike price for the remainder part. इसकी dilution post shareholding अगर आप देखें, mandatory portion अगर आप देखेंगे तो maximum per party goes to 1.1%, and अगर 50% remaining भी हो जाएगी तो it can go up to 1.9%. So it's an insignificant part in terms of dilution. और अगर आप इस पे डेल्टा देखें जो कि आपका आता है 20% डिस्काउंट टू द फ्लोर प्राइस से, it will equate almost to the same amount कि अगर incentive rate लोन का 3 months Cabal plus 1% था, उसी लोन को आप कमर्शियल करें तो पीरियड में जो उसका डिफरेंस है वो इसके अंदर फिल्टर है. Theoretically this is how it works to entice the company to go into listing.
और अगर कंपनी लिस्ट नहीं करती तो पेनल्टी भी रफली 85 से 90 मिलियन के दरमियान में है, जो कि लगती है बिल्कुल अगेन कमर्शियलाइज्ड इंसेंटिव जो कि कंपनी के इस वक्त के लोग। Slide 18, the mobile sector overview. On top left, what you see is number of SIMs registered per 100%. इस वक्त फिगर 84 है, ये थोड़ा मीनिंगलेस डेटा है लेकिन पीटी का डेटा इंपॉर्टेंट है शेयर करना। इसमें तमाम एक्टिव जो शुरू से लेकर आज तक सिम इशू में सारों पर है। इसमें ट्रैकिंग डिवाइसेस है, आपकी वाईफाई है, नॉर्मली जिस किस्म का भी सिम आज तक इशू हुई, एक आईडी कार्ड का 5 सिम इशू कर सकते हैं। All data is part of this. Right top का data is more relevant because this is 3G subscribers, which is more relevant to smartphones. Now it says that 2015 में this figure was 30.7 million SIMs, which has shot up to 100 million SIMs, and within the last 1 year there has been a growth of 25%. Now this 100 million, these are SIMs, these are not the smartphones. Okay, एक स्मार्टफोन में 2 सिम भी होती हैं, इसमें डेटा सिम भी है, ट्रैकिंग सिम भी है, डोंगल जिसको आप कहते हैं, तो सारी स्मार्टफोन सिम पे चल रही होती हैं। अगर नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स देखने हैं तो दैट इज द डेटा ग्राफ ऑन द बॉटम लेफ्ट which gives you smartphones as a percentage of population. You can see Pakistan is at 18% only, behind everyone else in the region. India at 32, Bangladesh at 32. You can see China all the way up to 63 and South Korea up to 77. यहाँ मैंने उन demand drivers की बात की थी कि we see a sea of change and a very strong growth because number one, entry-level smartphone आ गया है, which will replace the remaining 82% of the population to feature phones and conversion IP to smartphones. Second is the 3G, 4G will be penetrating money. We are talking of 5G, which would be a paradigm shift in technology by 2023. Third is obviously replacement cycle, generally assumed to be 3 years. And fourth being the digitization process in Pakistan makes it inevitable that smartphone has to penetrate. Smartphone के sales volume अगर आप देखें इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा 2020 में पूरी मार्केट का साइज था 9.5 मिलियन स्मार्टफोन्स which shot up to over 14 million. So ये जो इतनी रोबस्ट ग्रोथ इसमें आई है अराउंड 45% की, जिसमें एयरलिंक ने ग्रो किया है रफली बाय अराउंड 53%. So this tells you कि जो स्मार्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन की कन्वर्जन है दैट इज आल्सो टेकिंग प्लेस एट अ रैपिड पेस. Slide 19 ये मैं डिस्कस कर चुका हूं. Move to 20. This gives you a graphical snapshot of only 1 month sales in the month of March 2021. इसमें तमाम जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो आ रहे हैं. अगर आप इन्फिनिक्स देखें 18%, so 36% to Traction Group. Now Traction Group is a partner of Airlink in their factory. आप Samsung देखें 17% है. So इस लैंडस्केप में अगर आप देखेंगे तो Airlink की penetration in terms of products roughly they cover more than 70% of the smartphone brands. अब सेगमेंट वाइज में देखिए the best segment is the mid end जिसकी रेंज होती है $100 से $300 के दरमियान और लो एंड below $100. Now this is the game changer क्योंकि यहाँ पे सारा वो एंट्री लेवल कन्वर्जन आ रही है नॉर्मल फीचर फोन टू अ स्मार्टफोन. Slide 21, that's the market share of Airlink, 32%, Samsung by Pakistan largest, Tecno at 28%, Itel at 27%, Apple 11%, Xiaomi में 21% और overall basis पे Airlink is one of the largest distributors in Pakistan. और मंथली डेटा आता है आपको क्लोजेस्ट कंपटीशन में इसके अंदर मिलेगा कोई तो MNP है. बाकी डिस्ट्रीब्यूशन जो फर्म्स हैं they are more or less fragmented और उनके मार्केट शेयर बहुत छोटे हैं in comparison to these two. Slide 22, स्मार्टफोन का पोटेंशियल. अगर मैं लेफ्ट पे बॉटम की बात करूं आपसे GfK रिपोर्ट. ना GfK is a Germany based company जो के दो प्रिंसिपल्स पे ये रिपोर्ट निकालती है कि आपका ज्योग्राफिकली इस रीजन में स्मार्टफोन किस मॉडल का एक्टिवेट हुआ है. से फॉर एग्जांपल ये एप्पल को ये बता सकते हैं कितना आईफोन 10 एक्टिवेटेड है, कितना 11 है, कितना 12 है. फ्रॉम दिस रिपोर्ट ग्लोबली दे कैन असर्टेन कि कौन से प्रोडक्ट की किस जगह कितनी पेनिट्रेशन है, कौन सा मॉडल कितना सक्सेसफुल है. और दैट रिपोर्ट सेज कि पाकिस्तान में टोटल 12 मिलियन यूनिट्स activated in terms of smartphones, all smartphones included. Custom data says 14 million. इसका नंबर इसलिए ज्यादा है कि इसमें इन्वेंट्री पाइल अप है. Airlink imports are 2.5 million, which अगर आप Airlink का market share as a percentage of import custom data देखें, that is about 18%. As a percentage of GfK report, it is 21.1. Now the graph that you see, the blue line is the GfK report, the orange line is the import custom data, and historically the difference between the two was the gray market, which going forward आप देखें कि DERMS implementation of converge होगी, which means the grey market is now completely eliminated. Slide 23.
ये मैं आपसे slide discuss कर चुका. I'll move to slide 24. This is the composition of the stores. Next 5 years, the company plans is store 14 से उठ के 150 हो जाएंगे. और जो sales composition साल बाद देखेंगे, तो overall अगर आप base case लें, तो 100 की अगर sale है, तो उसमें से 20 sales से आ रहा होगा, 80 distribution से आ रहा होगा, 130 will be coming from the manufacturing facility. और ये जो 30 मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ये इंशाल्लाह 2000 the company expects to achieve. Retail वाला 20% is over the next 5 years as we go along and develop these stores. So this is again a journey from 8% margin add करें further 8 to 16 और अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें तो 20 से 21 का. Retail outlets की जो segmentation है, that is into power retail, which is located in mobile market. Just to make the lead time zero. Premium store would be located in high income areas. ये दोनों भी बने. Category A जो big malls से बन गए, जो आपसे शेयर कर लिए. Category B in tier 1 and tier 2 cities, mid income areas जो हैदराबाद, मुल्तान और भावलपुर में already established हुए, और category C tier 2 cities के लोग areas में आ गए. Slide 25 very quickly. E-commerce sale का आपको figures दे रही है. 21 का number. We are expecting it to be twice of what was there in 20. So to give you a reflection. A smartphone is a necessity, and if this is growing rapidly, so there is no way that smartphones will not see enormous growth. Slide 26, जितना पैसा receive करें, it is going into the working capital of the company. 27 is the revenue statement, historical numbers हैं. आप देखिए 2014 में 2.4 billion की sale, which increased to 5.9 all the way up to 43 billion. And next slide आपसे 28 discuss करूँगा very quickly. दो slide रहेगी. Gross margin और net margins का difference. ग्रोस मार्जिन का जो डेटा ये इतना रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो टैक्स स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन होते हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ड्यूटी और टैक्स स्ट्रक्चर को रिड्यूस किया तो नेट मार्जिन का डिप इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स. जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस पीरियड में जो पेंडेमिक का है, ज्यादातर जो प्रोडक्ट बिका है दैट इज ऑफ अ लोअर, सो है उसके मार्जिन्स कम होते हैं. और अगर यही मिड एंड हाई एंड और प्रीमियम में चला जाएगा तो ये मार्जिन वैसे ही product mix shift पे 5.5 तक जा सकता है इसी. Next slide 29. See the financial projections for year 2022. Sales are projected to be 72 billion. As a rule of thumb मैंने आपको बताया था कि जो money in होगा वो 12 महीने पे 5 times हो सकता है, तो 4 billion can go up to 20. 9 महीने का अगर आप रिजल्ट लें तो 16 billion की एडिशन यहाँ से आ रही है, because money available with the company would be in this year for 9 months. कंपनी का नॉर्मल मंथली रन रेट है, जिससे सेल्स फिगर बेस केस में 72 बिलियन होती है. उससे आगे ग्रोथ जो है इसको 15 और 20% के दरमियान उसको रखा गया है. हालांकि हिस्टोरिकली कंपनी हैज बीन ग्रोइंग बिटवीन 40 to 50%. और ग्रोस मार्जिन, नेट मार्जिन जो आप इंक्रीज देख रहे हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट, रादर दिस इज द डेल्टा दैट द कंपनी इज गेटिंग फ्रॉम द रिटेलिंग बिजनेस एंड फ्रॉम इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग. सो वहां से जो मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं. सेकेंडली जब आप एसकेडी पे जाते हैं फ्रॉम सीबीयू, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट खासतौर पे 100% कैश मार्जिन वाली, और जो आप इंपोर्ट साइकिल में 15 दिन के लिए पैसे ब्लॉक करते थे वो खत्म हो जाएगी. तो ये वहां से आएगा. आपसे मॉडल भी शेयर हो जाएगा. मॉडल में आप तफसील में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज क्या मार्जिन हैं, एंड ऑब्वियसली कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कैसा है और फ्यूचर ग्रोथ किस तरीके से की गई है. यू विल हैव अ फेयर आइडिया. स्लाइड 31 पे मैं चला जाऊंगा. नाउ दिस कंपनी, इट्स अ पॉपुलेशन पे, इट्स अ रिटेल पे. You can see that very well. We believe कि ये कल को 14-15 ट्रेलिंग मल्टीपल पे चलनी चाहिए कंपनी. So 14-15 के मल्टीपल पे इस कंपनी चाहिए. और गोइंग फॉरवर्ड ये हमारी असेसमेंट है एज एन एनालिस्ट. आप सारे लोग, most of you are very well qualified in terms of analysis. You can run your independent analysis and you can compare this company with Mobile World Group, which is based out of Vietnam. वो कंपनी ऐसी कुछ कंपनी स्टॉक की पोर्टफोलियो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, और वो कंपनी वियतनाम में है. They have 44% market share. They are importing smartphones. They are manufacturing. They are into retailing, and they are also into export. So that company has a lot of comparable situation with Airlink. बड़ा closely model हुई है on that company. कंपनी की USP को हाई ग्रोथ समझते हैं, इसलिए हमने हाई ग्रोथ कंपनीज हर सेक्टर से उठाई. We picked up from pharmaceutical, we picked up from IT, we picked up from FMCG, and you can see Airlink fares very well when compared to those high growth companies. Slide 32 is the last slide, जिसमें आप देखेंगे कि 5-year CAGR Mobile World Group Vietnam listed entity at 34%, ours is 49%. Gross margin not comparable, tax structures हर जगह. Net margins almost similar. Return on equity we're at 39, we're at 28, and obviously
price earning multiple, I think that would be a function of the book building. कल market इसको कैसे price करती है. This was the long and short of the presentation. आपके जो भी question हो, you can raise your hand and we can start briefly taking up questions. Is there a question for you? इसको open रखो. आदिल को जरा open कीजिएगा लेफ्ट पे इनका माइक हो. Hello, this is Siavash from JS Investments. I'm actually the head of research. Yeah, I had a bunch of questions with regards to the assembly plant, so I'll just run through them quickly. Firstly, in the model that we've got, if I look at FY26, so your production for phones is something around 12 million? Adil, you are breaking up. दोबारा से पूछिए question, I couldn't hear you clearly. Yeah, what I'm saying is that your production for the assembly plant in FY26 is somewhere around 12 to 14 million phones. And so all these phones that you're manufacturing, will these be sold off through Airlink or will they be distributed to other wholesalers as well? Because your sales numbers are lower. Yeah, so मैं आपको वैसे करता हूँ जैसे ये यहाँ बैठे हैं 30% जो है वो इनका बेस केस assumption है कि ये खुद से बेच रहे होंगे through their own distribution network. The remaining would be allocated by the principals to their other distributors. All right. So if you're selling 30% phones directly through your through Airlink, right? That comes out to around like 5 million phones. That is correct. And your overall sales by FY26 are how much? Sorry. What's the number for overall sales in FY26? Model देखें please. 7.8 million. 7.8 million. So basically, you'll eventually transition to basically having a majority share of selling Techno, Itel in these phones, right? Techno, Itel, Samsung, all these. देखें, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि कंपनी का यूनिटरी ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगी हमेशा नीचे वाले मॉडल्स में. वैल्यू आपको नजर आ रही होगी ऊपर हाई है. तो इनके मिक्स में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वॉल्यूम कम होता है लेकिन उनकी सेल वैल्यू बड़ी होती है. नीचे जितना जाएंगे उनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, तो सेल वैल्यू कम होती है. So it will be a combination of both. But all right, yeah. would be a game changer और यहाँ पे आपको पैन पाकिस्तान ग्रोथ नजर आएगी. हिस्टोरिक डेटा से भी आपको ये नजर आएगा कि 37% जो मार्केट कैप्चर ट्रांजेक्शन ग्रुप ने की है वो बेसिकली एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स में है. कल को ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन सैमसंग के भी हो सकते हैं, ये एंट्री लेवल फोन्स Xiaomi की भी हो सकते हैं. दैट डिपेंड्स कि वो पाकिस्तान में लो रेंज के अंदर और जो मिड इनकम की जो लो है उसके अंदर वो एंटर हो जाते हैं. सो फ्रॉम दैट एंड इट कैन ग्रो. All right. Then the other question is that for the assembly plant, you're assuming that after a few years, you'll basically go into a double shift. So you have more laborers, I assume, as well. After salary expense, but if I look at your financial model, your salary expense is basically doubling when the plant comes online. And then after that, there's basically a 10% increase every year. So when you go into a double shift, won't your salaries expense jump by a significant amount? That happens because of only that salary which is linked with the factory workers. So that portion is not so much because in Pakistan the labor is around 21,000 rupees per person. So that will be I understand that. Basically, I'm looking at, just for reference, I'm looking at your conversion revenue sheet in which you assume that you'll have double shift production in FY25 and FY26. So you have around 8 months of double shift production in 25 and then 10 months of double shift production in FY26, right? So after revenue you have for those 2 years, it's your salary expensive for that 2 years, it's only going up by 10%. Shouldn't you see like a bigger jump? अच्छा नहीं, अगर मैं इसमें ये बता दूं कि अभी भी अगर आपने असेंबली विजिट की थी तो 50% एम्प्लॉय वहां पे स्टॉक एम्प्लॉय जिसको रिजर्व में रखा जाता है. तो वो जो ग्रोथ आप देख रहे हैं कि आईडी ऑलरेडी एम्प्लॉय बेस इज मच और इसका एक लर्निंग कर्व है. अगर वहां पे फैक्ट्री में कुछ लोगों ने विजिट में क्वेश्चन किया था कि शुरू में कितना टाइम लगता था, तो लर्निंग कर्व में वो ट्रेन हो रही होती है तो चर्निंग आउट बेहतर हो जाएगी. इसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑलरेडी बहुत आ गई है इन द एक्जिस्टिंग सेटअप. आई डोंट नो वेदर यू वर देयर इन दैट प्रेजेंटेशन जो कि लाहौर में था, उस पर गए थे कि नहीं गए थे. सो जब पहले महीने में और ये रैंप अप ट्रांजेक्शन ग्रुप खुद कंट्रोल कर रहा है. तो जितने एम्प्लॉइज हैं
वो उनको खुद से ट्रेन कर रहे हैं और उनकी टारगेट्स को वो खुद से इंक्रीज करके ऑप्टिमम लेवल पे ये अचीव करेंगे इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। सो यू वुड सी कि वो एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बहुत डिफरेंट इंक्रीज कर जाएगी। और इन्होंने जो स्टॉक एम्प्लॉय ज्यादा रखे हुए वो इसलिए भी रखे हुए थे कि इट्स अ प्रोसेस जिसमें आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं। व्हाट यू डू इज दैट थ्रू दोस चाइनीज पीपल हु आर ऑन बोर्ड हियर टू ट्रेन देम टू कीप देम एडिशनल स्टाफ जो कि उन्होंने किया हुआ था उसको कंप्लीट यूटिलाइजेशन में ला रहे हैं। So ये आपने मजीद डिटेल में समझना हो, the CFO is here. You can always come down to talk to him with the model, and he can also visit you and discuss and explain the entire phenomenon. मैं जरा आदिल आगे क्वेश्चन ले लो because time short है। आतिफ से ले लो please. जी आतिफ। ये जो फिर डिस्क्लोजर अभी का जो अपडेट है आपका है उसमें इट इज मेंशन कि आपको 4.7 मिलियन रिसीवेबल्स 2.6 मिलियन इज पास थ्रू फॉर ओवर 90 डेज। तो ये कितना सीवियर है? क्या ये नॉर्मल रूटीन है कि इतना ओवरड्यू पहले भी हो जाता है या कुछ आप अच्छा प्रोस्पेक्टस के ओवरड्यू की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मली चलता है। आप देखें हर ऑडिटेड अकाउंट्स में अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखते हो सिंस फ्रॉम 18, 19, 20 हर साल इसमें फिगर होता है और उसी ऑडिटर करता है बैड डेट्स और उसी को नेक्स्ट फाइनेंशियल के ऑडिट पे रिवर्स बैक करके फिर नहीं करता। ऑलरेडी कितनी प्रोविजनिंग हो चुकी है और 90 डेज से ऊपर का जो आपको रिसीवेबल नजर आ रहा है और ये भी डिक्रीज होके 2.7 जो नजर आ रहा था वो 31 दिसंबर पे 1.5 है। सॉरी 1.5 वर्ड 30 जून 2020 पे आप जो प्रोस्पेक्टस में देख रहे थे वो 2.7 बिलियन था मोर देन 90 डेज। 31 दिसंबर के जो रिव्यूड अकाउंट्स उसी में लगे हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो इट हैज कम डाउन टू 1.5 बिलियन। शायद वाली बात को पंजाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर 90 डेज ज्यादा ओवर होगा तो क्या आप उसकी प्रोविजन बुक करेंगे? जी डेफिनेटली। ऑडिटर करना है ना कितने अमाउंट की प्रोविजन हो चुकी है? जी मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब 18 का ऑडिट अकाउंट उसने लिए उसके अंदर जो फिगर थी उसकी प्रोविजन की और जब नेक्स्ट ऑडिट हुआ तो उसकी रिकवरी की बेस पे उस प्रोविजन को रिवर्स किया और नई की प्रोविजन कर। तो आज तक हमारा कोई बैड डेट्स नहीं हुआ। अरे चलो ठीक है ओके। सेकेंडली आपने कहा है कि आपकी सेल्स जो है वो रिस्क फैक्टर में कहा है कि आपकी डाइल्यूट होगी या खत्म हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। तो कितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, कितना परसेंट इम्पैक्ट आपके पास आ सकता है? किस सेल की बात कर रहे हैं? आतिफ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। किस सेल की बात कर रहे हैं आप? सैमसंग के सेल्स की बात कर रहा हूँ जो सैमसंग आतिफ जी आतिफ सैमसंग का शेयर रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा। उन्होंने लिखा था कि मटेरियल इंपैक्ट है ना। मटेरियल इंपैक्ट डजंट मीन कि वो नेगेटिव है। आई टोल्ड यू इट्स अ ह्यूजली पॉजिटिव मटेरियल इंपैक्ट। और ये जो 4 इंपॉर्टेंट रिस्क हैं उसके ऊपर कंपनी ने एक पेज भी बनाया है ताकि आपको उन रिस्क का डिटेल में रिस्पॉन्स कर दे। तो वो हम आपको सर्कुलेट भी कर देंगे। मैंने आपको जैसे बताया था कि लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इस वक्त अगर एयरलिंक की है सैमसंग का तो सैमसंग विल कंटिन्यू एयरलिंक विल कंटिन्यू टू बी द डिस्ट्रीब्यूटर। और क्योंकि प्राइस गिरेगी तो इनकी पेनिट्रेशन मजीद बढ़ेगी और फाइनेंशियल चार्जेस क्योंकि लोकली प्रोक्योर कर रहे होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। So that is a huge positive when SKD line operative हो जाएगी of Lucky with vis-a-vis Samsung in Pakistan. Thank you so much. Thank you, जी. Next question. Assalamu alaikum. This is Mohammad Salah from Mizan Investment. Sir, I had 3 to 4 questions. Firstly, अभी आप जब ब्रीफिंग अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में आपने कहा था कि Xiaomi का अनाउंसमेंट विद इन अ वीक और सो विद इन फ्यू डेज एक्सपेक्टेड है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस साथ कर रहे हैं। सो विल इट बी यू गाइस और नॉट? बिकॉज एज पर प्रीवियसली शेयर्ड इन्फो यही था कि जो Xiaomi जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जॉइंट वेंचर करेगा उसके साथ उसी के पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी होंगे। सो इफ इट्स नॉट यू गाइस तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी चले जाएंगे? देखिए पहली बात यह है कि कहीं भी मुझे नहीं पता आपकी सोर्स क्या है। किसी ने ये नहीं कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सारे उसके पास चले जाएंगे बिकॉज बैंक पाकिस्तान कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कभी भी प्रिंसिपल काम नहीं करता। सो देयर विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क।
All I can confirm at stages, जो मुजफ्फर साहब ने पहले भी कर दिया था कि we can't tell you exactly कि what is going to be the outcome, but certainly the company is in discussion with Xiaomi at very advanced stage. But there are other players also, so we can't say with certainty at this point in time who will end up signing that with Xiaomi. Xiaomi से Airlink ने sign किया तो added advantage है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है. जस्ट इन केस नहीं भी साइन करता तो जो बेनिफिट ये सैमसंग की लोकल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में डिराइव करेगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया, वही बेनिफिट Xiaomi की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से भी इनको जाएगा कि इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश पेमेंट साइकिल फिर रिड्यूस हो जाएगा, इनके एलसी मार्जिन वगैरह खत्म हो जाएंगे और अगेन दे विल बी एबल टू रोटेट एंड चर्न the money available to them more number of times as compared to what was happening previously. So with Xiaomi, certainly advanced stages पे है जरूर discussion. अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है, अगर आईपीओ से पहले अनाउंसमेंट आ गई तो वो पूरी पब्लिक को पता होगी, अगर उसके बाद आएगी तो नहीं पता होगी. Okay, thank you. Another question is regarding your financial model. उसमें आपके जो advances and deposits and your balance sheet वो काफी significantly decline हो रहे हैं from 9 billion to 6 billion. अब इस जो latest financials हैं उसमें वो almost 2.5 billion तक आ चुके हैं. तो what's the reason कि जो आपकी margin, आपकी specific जो है margin against letter of credit जो है वो requirement बहुत कम हो रही है. So any particular reason कि margin कम हो रहा है और मूविंग फॉरवर्ड भी आपके जो आपने फोरकास्ट किया हुआ है उसमें भी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट जीरो ही हुई है. सर वो इसलिए कि जैसे ही हमारी परचेजिंग कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम सीबीयू टू एसकेडी, तो स्टेट बैंक की जो कंडीशन थी 100% मार्जिन की, दैट वाज ऑन सीबीयू ओनली. तो एसकेडी के ऊपर वो है नहीं. तो अब जैसे जैसे फाइनेंशियल्स एसकेडी की तरफ मूव होगी कंपनी, तो उसके ऊपर मार्जिन जीरो हो जाएंगे और इसीलिए आपको कैश फ्लो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है. ओके, two more questions. Firstly, जो आपने रिटेल मॉडल पे आपने कहा कि आप अपने स्टोर्स बढ़ा रहे हैं तो 150 स्टोर्स, आपके जितने भी स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं, योर रिटेल मोड ऑफ बिजनेस इज गोइंग इनटू इज करंटली आल्सो इन लॉसेस और फोरकास्टेड मॉडल में भी आपके लॉसेस में ही है. सो व्हाई इज इट यू गाइस पुशिंग टुवर्ड्स द रिटेल मॉडल कि आप रिटेल को डिस्पाइट अकरिंग लॉसेस आपको बढ़ा रहे हैं? लॉसेस कहाँ से आ रहे हैं? लॉसेस तो नहीं है रिटेल के ऊपर, और सेकेंडली इस चीज को कंजर्वेटिव नंबर पे रखा गया है हमारी कंसल्टेंट की टीम ने कि हम अगर रिटेल के ऊपर रेवेन्यू दिखाएंगे तो मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा. अगर आप रिटेल का पोर्शन लेते जाएंगे तो मार्जिन बढ़ते जाएंगे. अच्छा, हयात ये प्लीज डिस्कस कर लीजिएगा सीएफओ से ऑफलाइन. लॉसेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता रिटेल साइड पे. आपने फिगर को पता नहीं कैसे पढ़ा है उसकी. So I think सर सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन द रिटेल फ्रंट उसको करें तो आप मॉडल में वो लॉस भी शो कर रहा है जो मॉडल शेयर किया गया है. ऑपरेटिंग आप सारी टोटल कॉस्ट देख रहे होंगे, इसकी नहीं होगी. तो नहीं रिलेटेड रेंटल्स एग्रीमेंट जो आपके जो रिटेल साइड के एक्सपेंस है खाली उसको कंसीडर करते हैं. वो आप चेक करें तो 15 प्लस 8 पावर रिटेल एंड टोटल रिटेल ये मिलके बनती है 5 बिलियन 23, और जबकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2.8 बिलियन FY26. आप पावर रिटेल का सेगमेंट मिस कर गए. I'm talking about before to FY26. आप तो 26 में जाके वो आ रहा है ना, तो करंटली भी आपके FY25 में लॉसेस ही है. नहीं, कहीं पे भी नहीं आ रहा. अब चेक करें कौन से साल की बात कर रहे हैं आप. मैं FY25 तक की बात कर रहा हूँ जी. FY25 तक की बात कर रहा हूँ सर. FY25 तक अगर आप जाते हैं तो देखिए FY22 2.5 बिलियन 4.8 7.7 एंड 11.3 is only from retail, और पावर रिटेल ऐड करते हैं तो 22 में 446 मिलियन 1.5 बिलियन 3.3 बिलियन एंड 5.5 बिलियन. अब इसके रिस्पेक्टिव जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हो तो 22 में 754 मिलियन ओनली, देन 1.2 बिलियन 1.79 एंड देन 2.3 बिलियन. तो कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो रहा. लिंक में सो गया होगा आपके पास कोई लिंक हिल गया होगा. समथिंग must have gone wrong कि वो कोई लिंक द्वारा हिल गया.
आप ऑफलाइन ये मतलब आप बैठ के डिस्कस कर लेंगे। चलें सर, ठीक है, मैं मुझसे आपसे फिर बाद में बात कर लेता हूँ। जो आपके एसोसिएट बिजनेसेस हैं इसके ऊपर थोड़ी सी अगर डिटेल शेयर कर दें कि वो क्या काम करते हैं, एंड इज इट पॉसिबल कि इन फ्यूचर इयर्स वो आपकी सेल्स का थोड़ा शेयर कैप्चर करें, क्योंकि एसोसिएट बिजनेसेस काफी हैं। कंपनी के एसोसिएट बिजनेस सारी प्रोस्पेक्टस में देगी और सारी गवर्नमेंट कंपनी से कोई भी इस बिजनेस के अंदर डायरेक्टली कंपटीशन का करीब ही नहीं है, मतलब अगर कोई रेलेवेंस ही नहीं है उसके से। थैंक यू। There is no issue of related party transaction at all. कोई भी इनका एसोसिएट बिजनेस अब तो सारी गवर्नमेंट है, वो कंपनीज बनाई थी, वो शेल कंपनी के तौर पर कहीं नहीं, आप उनकी डिटेल्स पासवर्ड देख लीजिएगा, बाकी किसी का भी कोई कंपीटिंग बिजनेस है ही नहीं, तो आपको कहीं भी ना हिस्टोरिकल मिलेगा ना फ्यूचर में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऐसी नजर आएगी एसोसिएट के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट वी कैन मूव टू आफाक। मेरे दो सवाल, एक तो ये था कि आप लोगों की आईटेल की सेल्स बहुत शार्पली इन FY23 गिर रही है स्पेसिफिकली, उसकी क्या वजह है? इज इट कन्वर्जन या आपसे ज्यादा है ये ब्रांड, इसकी क्या रीजन? That is converted from feature to smart. ओके, लेकिन अगर वो है तो फिर तो नंबर ऑफ यूनिट्स शुड नॉट बी डिक्लाइनिंग सो मच ना, क्योंकि अगर 10 यूनिट आईटेल कम बिकेंगे तो 10 यूनिट किसी और चीज के बिकने चाहिए, isn't that right? तकरीबन 1 मिलियन यूनिट्स का ड्रॉप है इन FY23 फ्रॉम टू 1.6 मिलियन टू 450,000। वो इसी तरह है ना सर, देखें आईटेल इस वक्त फीचर फोन ज्यादा बेच रहा है, तो ऐसा ऐसा फीचर फोन कन्वर्ट हो रहा है। और मैं एक सेकंड चीज आपको बताऊं, जो प्राइस डिक्रीज के बाद डिमांड का फैक्टर है वो बिल्ड नहीं किया हुआ, वो आप खुद बिल्ड करेंगे। अगर हम बिल्ड करते तो मॉडल बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाता। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखते हो तो अगर 10% प्राइस डाउन होती है तो 20% डिमांड रेज होती है एटलीस्ट। तो इसीलिए हमने तो उसको एक नॉर्मल पैरामीटर में चलाया है कि अगर हम जितना फीचर फोन डिक्रीज करके उतना स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा रेवेन्यू नंबर में निकल जाता। देखिए सिंपली इसके अंदर अगर मैं आफाक एक भी चीज ऐड कर दूं, फ्यूचर में कोई Xiaomi की बिल्ट-इन नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वेरिएंट फाइनलाइज नहीं, लेकिन अगर Xiaomi हो जाता है तो वो तो मेरे ख्याल में कंपनी की वैल्यूएशन तो 100-200% ऊपर चली जाएगी, बिकॉज दैट वुड बी अ डिफरेंट चैप्टर कंप्लीटली। वो तो कंपनी का जो इन्वेस्टर होगा उसको फ्यूचर में कंपनी जो भी करती है पॉजिटिव, तो उसके तो ऑब्वियसली दे हैव द राइट कि वो उस पॉजिटिव राइट को जर्नी को एंजॉय करें। यहाँ पे फिगर देखें, आपको मैं बताऊं, आप अगर 9 साल पहले जाए 14 करोड़ की सेल से किसी कंपनी को प्रोजेक्ट करें कि 48 बिलियन हो जाए, तो ये भी कंज्यूम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे होगी। नाउ वही ग्रोथ पैटर्न को हम बहुत ज्यादा खींच रहे हैं पीछे, कि कई जगह पे आपको जो डिप नजर आ रही है एज एन एडवाइजर हमने कहा कि आप इसको इतना इंक्रीज ना दिखाएं, इसको नीचे कर दें, फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसको भी नीचे खींचा है, बिकॉज इंडस्ट्री इज क्रेजी, बिकॉज इसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा है। मतलब आप अभी भी इसका मार्केट साइज देखे हैं, मैंने कंपैरिजन इसलिए दिया था कि वी आर स्टैंडिंग नोवेयर, एंड इस वक्त आपको मैं सिर्फ थोड़ा डाइग्रेस करूंगा, आपके जो टेल्को ऑपरेटर्स हैं जैसे कि मोबाइल हो गया, बाकी हो गया, दे आर फाइंडिंग इट टू बी अ ह्यूज इशू। उन्होंने 3G 4G ऐसे में बहुत पैसे पे किए, लोग फीचर फोन नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि सस्ता स्मार्टफोन नहीं आ रहा था। दे वांट कि स्मार्टफोन एंट्री लेवल जितनी जल्दी आए ताकि उनकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम और यूटिलिटी ऑफ 3G 4G वो बढ़ जाए, बिकॉज दे वांट टू डू अवे विद 2G टेक्नोलॉजी कंप्लीटली। ये 2G तो बाहर के मुल्कों में एडवांस कंट्रीज में तो बिल्कुल ही अबैंडन हो गया, अल्टीमेटली इसमें यहाँ भी होना है। सो बहुत सारी चीजों को हम फैक्टर इन इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो छोटे छोटे करते करते उसकी सेल के नंबर आपको ऊपर बहुत बड़े नजर आना शुरू है। ओके, लेकिन आपने जैसे मार्केट साइज की बात की, एंड आप लोग आई थिंक GfK की रिपोर्ट आप लोग कोट कर रहे थे, दैट इज द टोटल मार्केट अबाउट 16 मिलियन एंड अराउंड 14 मिलियन आई थिंक FY20 में आपने बताया था कि पाकिस्तान में सेल हुए, तो दैट जस्ट शोज कि देयर इज 2 मिलियन मोर एंड अबाउट 2 मिलियन तो आपके अपने वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इज दैट करेक्ट? मतलब 2 मिलियन की फर्दर पोटेंशियल है एंड आप लोगों के ही वॉल्यूम्स में 5 मिलियन से तकरीबन आप लोगों ने FY22 में बोला इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि योर मार्केट शेयर इज अबाउट 20-22% ऑड, तो इज दैट एन एग्रेसिव नंबर? मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, आपको क्वेश्चन आपको समझ आया? सर मार्केट साइज बढ़ा है 48% से, हमने ग्रो किया 53% से,
लेकिन जेएस कंसल्टेंट ने आगे जो हमारी ग्रोथ रखी है, अब ये देखिए 2020 में 3.6 मिलियन यूनिट बेच रहा हूँ और 2026 में बेच रहा हूँ 7.8 मिलियन यूनिट्स। अगर इन्होंने ग्रोथ पैटर्न को कंटेन ना किया हुआ तो वही कामरान साहब वाली बात है, तो प्राइसिंग तो कहीं ऊपर चली जाएगी। नहीं, मैं एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा था, शायद मैंने एक्सप्लेन सही ना किया कि आप 16 मिलियन एनुअल डिमांड पाकिस्तान के फोन्स की एंड FY20 क्या है कि अबाउट 14 मिलियन फोन्स की सेल हुई है, जिसमें से 3.6 मिलियन एयरलिंक ने किए थे। प्रोजेक्शन है 5, जबकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि 16 मिलियन टोटल डिमांड है and 14 हो चुकी है, तो the gap is only 2 million and you're taking 1.5 million from that, so isn't that excessive? No. देखिए मैं इसके जवाब देता हूँ। वो आपने फैक्टर इन, एक तो पहली बात है कि कैलेंडर ये देख रहे हैं, ये जून की रिपोर्ट है, सो दोनों पीरियड्स डिफरेंट हैं। वो डेटा हमारे पास जहाँ तक हम आपको देते थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर द ग्रोथ इज 48%, वो 14 मिलियन यूनिट पे दिसंबर 2020 तक, ठीक है। सो जून का फिगर तो आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है। इसी तरीके से अगर आप इसको अगले पीरियड में देखेंगे, ये ग्रोथ पैटर्न बिकॉज ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स, दीज आर क्रेजी नंबर्स। आप उससे पीछे देखें कि 7.7 एंड 8 मिलियन, उसके दरमियान में 2 साल रुका है। उसके बाद स्मार्टफोन एंट्री लेवल आते के साथ ह्यूज टेक ऑफ, सो दैट टेक ऑफ इन 12 मंथ्स वाज ओवर 45%। फ्यूचर ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी नजर आ रही है, शायद इससे भी तेज नंबर आपको नजर आएंगे। Now that data of GFK वो अब जब आगे आएगा तो हमें पता चलेगा, but these are two different periods जो आप बात कर रहे हैं, उसमें 6 महीने का लैग ऑलरेडी है। Okay, thank you. Thank you. You can move to bus. जी, can you Happy can be here. Thank you. Ji, you mentioned in the presentation that the improvement in margin in FY22 will not come from a change in sales mix, but that will come mainly because of revenues coming from retail and the assembly plant. Am I right? Yeah, largely correct. Yes. Yeah. So the revenue estimate for FY22 is around 72 billion. And when I was looking at your model, the distribution revenue was around 66 billion. So would that be right to say that on this 66 billion revenue, the gross margin would roughly be around 8 to 9%? नहीं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कैसे। देखिए 72 बिलियन में 30% तो आपकी अपनी प्रोडक्शन है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हो रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू वहां से भी आ रहा है, तो मार्जिन को इंक्रीज कर रहा है। सो आप वो 30% ऐड करेंगे। और इस पे मैंने पहले एक नोट बना लिया था एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज आई थॉट कि बहुत टेक्निकल हो जाएगा, सो वी विल शेयर दैट नोट विद यू टू गिव यू मोर क्लैरिटी कि इंक्रीज हो कैसे रहा है। तो वो जो 66 बिलियन देख रहे हैं, उसके अंदर 30% अपनी प्रोडक्शन की एडिशनल मार्जिन है, ठीक है। बाकी फिर ऊपर कन्वर्जन रेवेन्यू है, एंड देन इट इज द रिटेल पार्ट। Okay, got it. Other than that, the total funding requirement is around 4.8 billion. And so how many additional units are you anticipating to add in FY22 with this 4.8 billion amount? 1.5 million, roughly. So the total volume in FY22 will be around 5 million. 5 million units. 5 million plus 5.1. Okay, thank you. Please, if you can share that note with me. Sure. Thank you. Hello, sir. Am I audible? Yeah, audible, Nabil. Yes, sir. I just want to know about the short-term investment. कि आपने short-term investment की हुई है around 1 billion की, simultaneously आपने short-term borrowing भी ली है, और आप ड्यू टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आप ये फंड रेज कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रखने की क्या वजह है स्पेसिफिकली, जो कि आगे जाके FY23 पे कांस्टेंट हो जाती है आगे जाके? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि सर 1 billion. Sir, this is basically a TDR investment with the banks. So for getting the short term limit in a very short span of time, we have to give them some sort of deposits on short term. So what investment क्या है, वो TDR है, कंपनी का बेसिक लाइन ले लेते हैं. So that's how it is. So that's actually an interest rate play.
या आप TDR ले लेते हैं जरा अच्छे इंटरेस्ट रेट के K+2 पे उसके केस बोरिंग K+1 पे ले लेते तो वही डेल्टा आ जाता है. So that's what's happening. So it's not an investment going into कोई मतलब प्रॉपर्टी या ऑफिस या कोई इस तरह की चीज नहीं है. Okay, got it. Sir, second thing I want to understand your toll manufacturing business. आपने जो toll manufacturing है स्पेसिफिकली आपने कहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया हुआ. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो असेंबली बिजनेस है इसका ग्रॉस मार्जिन कितना है? Assembly का gross margin to 4.5% in this range. और इसकी cost of sale इसलिए नहीं है कि बेसिकली इसका सारा पेरोल फिक्स है. उसको cost of sale में आप दिखा नहीं सकते. वो उसको हमने part of payroll है और इंस्पेक्टर फैट में ऐड कर दिया. पेरोल में चला गया. सीधा रेंट चला गया. क्लासिफाई कर दिया वहां. निकाल दिया. नहीं समझा नहीं सर. आप ये बोल रहे हैं आपको जो $2.5 पर मोबाइल असेंबली आपकी जो रेवेन्यू मिल रहा है आपको $2.5 का, उस पर आपका सिर्फ 4% मार्जिन है बस. that is 4 to 4.5% आपका value percentage. मोबाइल फोन की वैल्यू का 4% या $2.5 जो है आपका उसका 4%? मोबाइल फोन वैल्यू. ओके, मोबाइल फोन का आपका वैल्यू का 4% है सर. सर वन लास्ट थिंग सर, एक आपने सर इंसेंटिव फ्रॉम सैमसंग एलसी आपने मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको स्पेसिफिक आपको क्या इंसेंटिव दे रहा है एलसी के इसके ऊपर? एलसी बाइंग पे 1% सैमसंग इंसेंटिव देता है एक्स्ट्रा. तो सर बाकी नहीं दे रहे ये सैमसंग? कोई स्पेसिफिक वजह है इसकी कोई कि बाकी मैन्युफैक्चर नहीं दे रहे, खाली आपको सैमसंग दे रहा है खाली आपको एक बेनिफिट? आपको एक सैमसंग ने ये शुरू से ही दे रहा है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहा है. और उसकी वजह ये भी थी कि हमारे पास सैमसंग का ओपन अकाउंट अराउंड 9.43 मिलियन यूएस डॉलर का. तो वो एक इंसेंटिव हमें मिलता था कि अगर आप ओपन अकाउंट में बाय करेंगे तो नहीं मिलेगा और एलसी में बाय करेंगे तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा. ओके सर, थैंक यू सर. Thank you. शहबाज को लेकर अगर फुरकान को लेकर we will take these two questions. अस्सलाम वालेकुम, शहबाज. मेरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग आप लोग यहाँ मेंशन कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज अबाउट 18%, राइट? एंड if I calculate 18% of 200 million की population, so number of smartphones तो बनते हैं 36 million. But आप यहाँ slides में show कर रहे हैं कि number of smartphones sold in FY21 is around about 14 million. तो ये थोड़ा मुझे clarify कर देंगे penetration कैसे है? बड़ा सिंपल है. I think शहबाज वो नंबर ऑफ टोटल स्मार्टफोन इन सर्कुलेशन बता रहे हैं. ये आप एक साल का डेटा देख रहे हैं कि नया स्मार्टफोन. अच्छा, ये एवरेज नंबर आप बोल रहे हैं ओवर टोटल स्मार्टफोन्स आउटस्टैंडिंग है. इसी ने एक और चीज भी ठीक कर दी है. अगर 14 मिलियन और 36 की फिगर आ रही है तो रिप्लेसमेंट साइकिल 3 साल का भी मैं आपको सही बता दूं. अच्छा, दूसरा आई थिंक एज पर योर फाइनेंशियल मॉडल आपकी टोटल सेल्स ऑफ यूनिट्स 3.6 मिलियन है. ये सिर्फ स्मार्टफोन तो नहीं है, राइट? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्टफोन्स प्लस फीचर्स. जी दैट्स करेक्ट. इसमें फीचर तो फिर अगर आप 3.6 में से 1.9 मिलियन, आप 1.2 मिलियन जो आपके स्मार्टफोन्स हैं, तो आई थिंक आपका अकॉर्डिंगली मार्केट शेयर में 20% तो नहीं हुआ ना? फिर वो तो कम हो जाता है मार्केट शेयर स्मार्टफोन्स. नहीं, मार्केट शेयर ये स्मार्टफोन कैटेगरीज जो आपको दी हुई है इनको क्लब ही स्मार्टफोन में किया. अदरवाइज फिर हम माइनस करते हैं कि आइटेल टेक्नो का कौन सा ब्रांड नीचे के मॉडल का स्मार्टफोन क्लासिफाई नहीं हो सकता. हम फिर माइनस करते फिर नहीं पहुंच जाते. हमने आपको ओवरऑल क्लब दे दिया कि ये स्मार्टफोन ऑपरेटर्स हैं, इन्हीं का स्मार्टफोन है और इनका ये मार्केट शेयर है, उससे कंपेयर कर दिया. और दूसरा तरीका ये है कि मैं वो भी इलाका से निकाल के माइनस करूं और फिर ये भी माइनस करूं, पहुंचेंगे हम एक. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. प्रॉब्ली आई थिंक एज पर योर मॉडल आप लोग की जो कैपेसिटी है ऑफ असेंबली प्लांट इज इंक्रीजिंग ऑन एनुअल बेसिस बाय आई थिंक यूनिट्स पर ईयर पर एनम. सो इज दैट कोई आप लोग एफिशिएंसी कोई बॉटलनेक्स है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या डीबॉटलनेकिंग है, किस तरह चल रहा है? क्या कोई माइनर कैपेक्स होता है, क्या होता है, किस तरह होता है? नहीं, ये शहबाज जो पहले हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि अचीव करने को तो ये 400,000 मजीद ऐड कर जाएगा डबल शिफ्ट पे.
अच्छा और ओके अगर if the push is quick तो ये जल्दी हो जाएगा. हमने तो उसको खुद स्प्रेड कर दिया कि इसको इतनी जल्दी ना दिखाएं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑनलाइन हो जाएगी. हम तो ब्रेक इवन लग रहे थे, वो तो डेटा हिस्टोरिक होके 3 महीने के अंदर उसने ऑटो अचीव कर लिया. तो अगर आईपीओ मैं 3 महीने पहले कर रहा होता तो मैं आपको वहां ब्रेक इवन 1 साल का दिखा रहा होता. ओके ओके सही है. एक मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग जो TFC कन्वर्जन है, डेफिनेटली बोला कि वो तो आई थिंक IPO के बाद ही यू विल किक स्टार्ट द कन्वर्जन प्रोसेस, बट उस पे कोई लॉक इन पीरियड है? फॉर एग्जांपल सही अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो वो आई थिंक 1 to 2% है, बट अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो तकरीबन वो बनते हैं अबाउट 30 मिलियन शेयर टोटल, राइट? तो उस पे कोई लॉक इन पीरियड है कि वो मार्केट में कम आ सकते हैं फ्रॉम सप्लायर पर्सपेक्टिव? वेरी सिंपल. 30 मिलियन तो वो नहीं बनेगा क्योंकि 100% कन्वर्जन नहीं हो रही थी. ऑब्वियसली ये तो यूएस एड और जो लेंडर है वो मिलकर डिसाइड करेगा विद द प्रिंसिपल कि उन्होंने कन्वर्ट कब करना है. लेकिन अगर आप सप्लाई ओवरहैंग की साइड से देख रहे हैं तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है. जनरली इफ यू हैव टू टेक दिस असम्पशन, जिस टाइम पे कन्वर्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि सप्लाई आ सकती है. I cannot comment on the on the decision of what would US Aid decide, but I can tell you only one thing. Normally company list हो रही है वो price discovery mode के अंदर है. You have to see कि future क्या है. Now it will be a call of a smart investor कि वो इसको फौरी तौर पे निकलने पे सोचेगा या उसकी ग्रोथ को देख के उसके बाद उसको उस तरीके से होल्ड करेगा. जिस तरीके से सप्लाई ओवरहैंग के ऊपर जितने 90 मिलियन शेयर इन्वेस्टर उठा रहे हैं उसमें भी किसी की कोई गारंटी नहीं है कोई कंपनी के लिस्ट होने के 6 दिन बाद बेच जाए. ओके ओके आई थिंक अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक एयरलिंक का इट इज आई थिंक बेस्ड ऑन राइट वॉल्यूम, राइट, नॉट ऑन वैल्यू बेसिकली, राइट? बिकॉज आप लोग की जो प्रोजेक्टेड increasing that much per unit compared to volume. So if you are able to incur higher volumes, then I think जो आपने जैसे आप बात कर रहे थे कि yes, numbers can be probably very in terms of valuation. Am I correct here? You are correct in the manner. ये value और volume ये थोड़ी जरा catch 22 बन जाए. Volume value focused आप हो नहीं सकते. मैं कस्टमर प्रेफरेंस आप प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके और यू कैन आल्सो इज जैसा कि इन्होंने टारगेट किया था कि हम 50% वॉल्यूम अचीव करेंगे इस साल में, उसको भी बड़ा एम्बिशियस था, वो अचीव हो गया. कस्टमर ने प्रेफरेंस अपनी खुद चेंज की. अब कल को प्राइस सस्ती होती है तो यकीन आपको शायद वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ के साथ वैल्यू भी मिल जाए, या उल्टा भी हो सकता है कि आपको वैल्यू ग्रोथ बहुत मिल गई और वॉल्यूमेट्रिक उतनी नहीं मिली. कॉम्बिनेशन वी आर मोर फोकस के सेल्स नंबर जो है मार्केट जैसे ग्रो कर रही है. Thank you, Kamal sir. That is all from my side. Thank you, Shahbaz. And lastly, Furqan, please. अस्सलाम वालेकुम. फुरकान, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छी ब्रीफिंग माशाल्लाह. सर मुझे 2-4 सवाल है. पहला सवाल तो मेरा इंडस्ट्री रिलेटेड है. आप लोगों ने कहा कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चलता नहीं है. ओप्पो का इस वक्त क्या मॉडल है? वो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है या मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन है? देखिए, ओप्पो और वीवो पहले 2 ब्रांड हैं और दोनों का मॉडल पाकिस्तान में है ही नहीं क्योंकि वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ गए नहीं. उन्होंने जब लॉन्च किया तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर चाइना से खुद लेके आए एंड दे आर डूइंग जस्ट वन थिंग स्ट्रेट फ्रॉम डे वन. वन डिस्ट्रीब्यूटर दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना. उनका वहां का डिस्ट्रीब्यूटर वही है, वो हर जगह उनके साथ चलता है, वो कोई और काम कर ही नहीं सकता, वो यही करता है, वो कंपनी खुद ही मैनेज करती है उनके साथ मिलकर. सो वो आप ये समझ लें हमारे कॉम्पिटिशन से आउट है. हम 21% मार्केट शेयर कह रहे थे आपको, पूरे पाएगा किसका? अगर आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर में देखोगे तो 33-34% बन जाएगा. नहीं वो ठीक है, बट क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल काम ही नहीं कर सकता पाकिस्तान में, बट आई थिंक शायद ओप्पो एक ऐसी एग्जांपल, शायद डायरेक्टली कॉपी पेस्ट वाली एग्जांपल नहीं है, लेकिन शायद ऐसी एग्जांपल हो सकती है कि जिसको हम लोग कह दें कि वो काम कर सकता है शायद. आई डोंट नो. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये, हम लोग प्राइसेस की बात करते हैं कि प्राइसेस नीचे आएंगी तो शायद वॉल्यूम्स बढ़ जाएं. आपके मॉडल में या तो मेरे पास कॉपी सही नहीं है या मैं गलत जगह देख रहा हूँ, किसी भी मॉडल की कोई भी फोन की प्राइस नीचे नहीं आती. इज इट करेक्ट?
ये है कि मॉडल के अंदर देखिए अभी एसकेडी स्टार्ट हुआ है, हम स्टार्ट हुए एसकेडी को सैमसंग Xiaomi जो बाकी मोबाइल की अभी प्राइसिंग आई नहीं है, वो फिर प्राइसिंग में खुद से सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं। आप पिछला ट्रेंड अगर देखते हैं तो 53% राइज के साथ जो प्राइसेस का ड्रॉप है, तो वो जो डिमांड जनरेट करता है 1:2 रेशियो का करता है। आप 20% प्राइसेस डिक्रीज करके डिमांड जनरेट करें तो अगेन फिर वही बात आएगी कि मॉडल की प्राइसिंग बहुत ऊपर निकल जाएगी। सर मेरे पास पीछे का डेटा नहीं है सर, आपने जो मॉडल दिया है उसके अंदर जून 20 की प्राइसेस है और उससे पहले का कोई डेटा नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं सकता अपने पास। आप अगर एवरेज ना सर हर साल का लाइक 2020 और 2021 का एवरेज यूनिट सोल्ड एंड एवरेज रेवेन्यू उसके बेस पे अगर आप देख लें तो यूनिट इंक्रीज इज अराउंड 26%, तो ये 1:2 का रेशियो बनता है। और इसी रेशियो को हमने आगे प्लॉट इसलिए नहीं किया वरना वॉल्यूम बहुत ऊपर निकल जाता था, और वो डिमांड ड्राइव अगर हम इसमें बिल्ड कर देते हैं तो ये जो मॉडल की प्राइसिंग है ये बहुत ऊंची चली जाती। नहीं सर आपको, हाँ मैं समझ गया, बट जितना फोन आपने बेचना है उसके लिए आपको कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, आई कैरी फॉरवर्ड द क्वेश्चन। एक सवाल, यस सर। सर अगर कैपिटल की तरफ आप जाते हैं तो आप देखिए मॉडल के अंदर बोरोइंग कम हो रही है, जबकि मेरे पास एग्जिस्टिंग बैंकिंग लाइन जो है वो 16 बिलियन की है। सो बोरोइंग इज नॉट अ इशू। जब मेरी इक्विटी सर आपकी बोरोइंग को, सर आप बोरोइंग मनी इज नॉट एन इशू, लेकिन जो आपकी जो सैमसंग आपको देता था जो पे का साइकिल था वो 2000 FY22-23 में जीरो हो रहा है, वहां से 4-5 अरब रुपए आपके बिजनेस में और फंस रहे हैं। एम आई करेक्ट? नहीं, वो पेबल देखिए वो जो ओपन अकाउंट का पेबल वो भी चला गया और उसके कंपैरेटिवली रिसीवेबल भी डाउन हो गया, तो वो इम्पैक्ट वहीं चला गया। जितना मैंने सैमसंग को पे करना था उतना सैमसंग ने मुझे देना था, मेरा रिसीवेबल भी था। अच्छा ठीक है, मेक सेंस। सर मुझे एक बात बताएं, अगर पाकिस्तान में फोन बनेगा और आपको 15 दिन लगते थे बाय एयर एक फोन आने में, अब जब पाकिस्तान में फोन बनेगा तो क्या आपका स्टॉक इन ट्रेड डेज नीचे नहीं आने चाहिए? स्टॉक इन ट्रेड डेज नीचे आ तो रहे सर एक सेकेंड, स्टॉक सेफ्टी स्टॉक लेवल वही 30 डेज का रहेगा। देखिए हमें वॉल्यूम इन स्टॉक बढ़ेगा बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर रहेगा। 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी, एक इंपोर्ट करने पे वो हफ्ते में या 15 दिन में आता था, और अगर एक स्टॉक 30 दिन में आएगा और उस पर इन्वेस्टमेंट की है तो अब स्टॉक ज्यादा आएगा बट वहां पे वॉल्यूम वैल्यू टर्म्स में तो कम आएगा ना, तो इसीलिए वैल्यू टर्म्स में कोई इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आया बट वॉल्यूम टर्म्स में इंक्रीज आया। इसमें हम ये एक चीज और भी ऐड कर लें, आपका सीपीयू का लीड टाइम है 15 डेज, एसकेडी का लीड टाइम है 30 डेज। सो स्टॉक लेवल जहां पर आप कहते हैं ना लोकल आपकी एसएमटी से कैपिटल डेज कम हो जाएंगे लेकिन स्टॉक बेस बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल कैश कन्वर्जन साइकिल में सिर्फ 15 दिन का फर्क पड़ेगा। जैसे अमेज़न ने की ना 75 डेज है वो 60 डेज पे आ जाएगा, तो फर्क वही 15 डेज का बड़ा जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, वो डेटर्स के डेज नीचे आ रहे हैं। डेटर के डेज तो वैसे आधे हो रहे हैं, वो मैंने देखा था, मैंने एक सर्विस होते हैं लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका टाइम ये सीपीयू से ये एसकेडी में बढ़ जाएगा। ये पता क्या, ये थोड़ा सा आप सब ऑफलाइन डिस्कस कर लो क्योंकि आपको पूरी कंपोजिशन देखनी पड़ेगी। एक तो एसकेडी यूनिट्स आपने खुद इंपोर्ट किए, उनका साइकिल, सारी एवरेज की बात हो रही है तो मैं आपको एवरेज के हिसाब से दे रहा हूँ, उनका साइकिल डिफरेंट चल रहा है। जो सीपीयू फिर भी स्टॉक हो रहा होगा वो डिफरेंट चलेगा, और जो एसकेडी यहाँ किसी और ने, सो यू सी यू विल बी डीलिंग विद 3 डिफरेंट एरियाज। उनकी एवरेज मैंने निकाल के आपको शॉर्ट करके बता दी, आप उस सेल्स को ब्रेक डाउन करके निकाल सकते हैं। ये 30% तो आपने खुद इंपोर्ट किया, वो 25 दिनों में आया, ठीक है। फिर 20-25% आपने एज अ सीपीयू अभी भी मंगवाया, वो 15 दिन में आया। उसके बाद आपने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग लकी हो गया, और यहाँ पे जो 2-3 फैक्ट्रीज और लगेगी, कल को यहाँ भी लगेगी, फर्ज करें कि उनसे डायरेक्ट जाके लिया तो दैट विल बी 0। सो देन ऑन एन एवरेज यू आर टॉकिंग, सो ये वन साइज फिट फॉर ऑल वाला। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आफ्टर द मीटिंग विद सीएफओ, तो प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड वी विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यासीन, क्योंकि बाकी सबके हो गए। यासीन का क्वेश्चन लेने, एंड देन वी विल
It's already pretty long. जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सर, ये बता सकते हैं कि आपकी जो B2B सेल्स है उसमें वो तो क्रेडिट सेल्स नहीं होगी, मतलब वो कैश बेस्ड तो नहीं होगी ना, क्रेडिट सेल्स होगी? B2B सेल्स करेंट सेल्स होती है। तो वो कितने रिसीवेबल टर्नओवर डेज कितना होगा इसका? B2B का अराउंड होगा 25 to 30 days, लेकिन उसका पोर्शन जो है वो बहुत कम होगा, अराउंड 5% ऑफ द टोटल 2%, 3%। इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं करता होगा। सर, प्रेजेंटेशन में ये है कि 18% कुछ पेनिट्रेशन है पाकिस्तान की, तो ये कितने सालों बाद आई है 18%? आई मीन के लास्ट ईयर कितनी थी या 2-3 सालों पहले कितनी थी? हाँ जी, ये इसकी इंक्रीज पिछले 8 महीनों की 20%। 8 महीने पहले का डेटा उठाएंगे पाकिस्तान 3% था। तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो फीचर फोन से किसी ने मुझसे अगर 8 महीने पहले कंपनी डिस्कस की होगी तो उसको अपनी स्लाइड उठा के देखें, उसमें लिखा हुआ है 50%। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि हम इंडिया को मतलब ब्रेक मतलब कर सकते हैं, गिवन के उनका 25% है और आपका एग्रेसिव मॉडल इतना है सेल्स पे। इंडिया भी बहुत पेस से बड़ा है। ये जियो की लॉन्च के बाद आपने अगर इंडिया में देखा एंट्री लेवल स्मार्टफोन जब जियो लॉन्च हुआ था, इंडिया उससे पहले हमसे तो ऊपर ही था, लेकिन उसके बाद आई थिंक इस वक्त इंडिया हैज गॉन टू अबाउट 30+, 32 थी फिगर। सो पाकिस्तान कैन ग्रो ऑब्वियसली इन थ्योरी, इट विल ऑल डिपेंड कि हमारा फोकस करना। देखें, एक नेचुरल पुश तो आई नहीं है, वो इसलिए आ रही है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा नहीं किया कि हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, पेंडेमिक में और वैसे भी रीजन में सबसे पीछे रह गए, इनोवेटिव हो गया कि यू हैव गॉन इनटू अ पुश फ्रेमवर्क कि यू आर डिजिटाइजिंग योरसेल्फ। सो हमें ये नजर आता है कि ये गैप फिल करने में कि आप इंडिया पहुंचे और बांग्लादेश के करीब पहुंचे, उसी से डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है एंड वी फील कि दिस विल कंटिन्यू। ये कि आपने बताया कि रियलमी एंड वीवो के चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इनका कोई प्लान है कोई लोकली शिफ्ट करने के आपके और मतलब चाइनीज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्राइसिंग में? शुरू में साहब ने भी सवाल किया था कि सिंगल प्रोडक्ट चल सकता है, मैंने जवाब दिया था इन द कॉन्टेक्स्ट कि वायबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? फिर 10 साल लगाए। इट टुक 10 years for them to do this with all the company support के वो उसमें पेनिट्रेट करते हैं। नाउ चाइनीज ब्रांड का ये मॉडल है, सैमसंग का ग्लोबली या Xiaomi का या एप्पल का सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है ही नहीं। ये आप खुद जाके ढूंढ लीजिए। आप जितनी jurisdictions में उनको स्टडी करेंगे, you will not find them all over the globe कि they have never been into a single distribution environment. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे दूं, just take it as an example. आज JP Morgan का पाकिस्तान में सिर्फ एक ब्रोकर से अकाउंट नहीं है, because आप पीछे एग्जांपल देखें कि ऐसा भी हुआ कि कोई एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप था, अगर किसी लोकल ब्रोकर में प्रॉब्लम आई तो पूरा सिस्टम बैठा, वो डाइवर्सिफाइड रहते हैं, they will minimum operate with 2 and in Pakistan's landscape with 4 countries such as India जो बहुत बड़ी है, maybe 7, 8, 9. So that will depend on the population, but single party risk नहीं लेगा। ये चाइनीज की मेरा थोड़ा सी यूनिक है अपने काम के अंदर, तो उन्होंने वो काम किया, but it took them 10 years to get to the level where they have achieved, और वो solely उनके साथ ऑपरेट कर रहा है, वो किसी लोकल को टच नहीं कर सकता, that is exclusive. Okay sir, thank you so much. Thank you Yasin, thank you everyone for your time. बहुत शुक्रिया आप सबका कॉल पे ज्वाइन करने का। I can extend my support to you that the company and us as advisors, we are available. या आपकी कोई क्वेश्चन हो, you have our contact details, please